So we'll start with our new chapter, that is chapter number 6. That is on temple architecture and sculpture. Okay. So in last class, we were reading about the mural paintings. In chapter number 4, we have discussed the mural paintings in Ajanta caves. And the earliest mural paintings which survived were from Ajanta caves. And then we have some faded paintings in Ellora also. Okay. And then in chapter number 5, we have read about the mural paintings in the South India. We read the paintings in the Kanchipuram that is patronized by the Palwas. Okay. And apart from that, we have seen the paintings of the Vengi, okay, Badami, Ehol, and the South Indian kingdoms like Chola Chera Pandya. Okay, we have seen some remnants of mural paintings. And chapter number 6 is for the temple architecture and sculpture. Okay, so यहाँ पर हम सारे temple architecture के बारे में पढ़ेंगे. And first of all, we will start with the Brahmanical temples, and then we will go with the at the last of this chapter we will discuss about the Buddhism and Jainism temples. Okay. तो इसमें सबसे पहले हम ब्राह्मणिकल टेम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद बुद्धिज्म और जैनिज्म टेम्पल्स के ऊपर जाएंगे. अभी आप ये सोच सकते हो कि आर्किटेक्चर तो पहले भी हमने पढ़ा था, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर पढ़ा था हम लोगों ने, एंड वी हैव सीन दैट stupas we have seen the viharas, okay, chaitya halls at the time of the Ashoka also, and there are some rock cut structures, and then after the Ashoka, the post-modern age, we have seen the various kind of architecture that further developed. Okay, and we have seen the various kind of the religious stupas and the viharas. So what is the difference between these temples and this earliest monuments of the Buddhist culture? The difference is that temple is that in temple we put some kind of image. हम कुछ image रखते हैं and we worship that image. So there is a idol worship in temple. Okay, and that is why it is little bit different from the earlier mode of worship. Because earlier we have seen that we have not worshipped the Buddha as an image. Okay. Yes, we have found some images in the Kushan period of the Buddha that is in from Gandhara and Mathura. But yes, we have not placed those images in some kind of temples. Okay. अलग से बिल्डिंग नहीं हम लोगों ने जिसमें वो इमेजेस हमने रखे हैं उसको idol worship कर रहे हैं. बट कोई मोड क्या चेंज हो जाएगा आफ्टर गुप्ता पीरियड के बाद ये एक नया आपको देखने को मिलेगा. So what is this? That means in temple there is a worship of idols. Okay. So we'll start. I hope that ये चीजें clear हो गई आप लोगों को कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको. That why temple architecture is different. So formally this temple architecture was started from the Gupta period. Gupta period से start होता है temple architecture. Okay. So most of the art and architectural remains that survive from ancient and medieval India are religious in nature. So we are saying that the most of this architectural structures of ancient and medieval India are generally religious in nature. Okay. And that does not mean that people did not have art in their homes at those times. But domestic dwellings and the things in them were mostly made from materials like wood and clay, which have perished. This chapter introduces us to many types of temples from India, although we have focused mostly in Hindu temples. At the end of the chapter, you will find some information on major Buddhist and Jain temples too. However, at all times, we must keep in mind that religious shrines were also made for many local cults in villages and forest areas, but again, not being of stone, the ancient and medieval shrines in those areas have also vanished. So what you are trying to say in this particular paragraph? So we are saying that the stone temple, the temples which survived from the ancient and medieval period were generally of the stone temples. Okay. Otherwise, the other things, other structures which were created by the householders in their homes also and as a community also,
they were perished. And why they were perished? Because these temples were not of stone. So जो भी टेम्पल स्टोन के बने हुए थे, जो बड़े बड़े टेम्पल है स्टोन के बने हुए हैं, that could survive till this date. वो आज भी सर्वाइव कर चुके हैं. Why? Because it was made up of stone. लेकिन आप देखोगे जो नॉर्थ इंडिया में स्टोन काफी कम है. साउथ इंडिया में स्टोन काफी ज्यादा यूज होता है. नॉट ओनली साउथ इंडिया, लोअर पार्ट ऑफ द इंडियन डेक्कन आल्सो यहाँ पर स्टोन का काफी यूज हुआ. तो जहां जहां पर स्टोन का यूज हुआ है वो टेम्पल सर्वाइव करते हैं, और जो जहां जहां पर ब्रिक का यूज हुआ है या मड का यूज हुआ है या वुड का यूज हुआ है वहां पर टेम्पल पेरिश हो चुके हैं. सो जनरली जो भी हम टेम्पल्स पढ़ेंगे अभी वो स्टोन टेम्पल ही है, because these stone temples could only survive from the ancient and medieval India. So first thing you have to clear in your mind that almost all of these temples are of stone temple. And stone temple में दोनों तरह के आएंगे, rock cut temple also and the this stone structured temple also, दोनों आएंगे. And अभी rock cut के अलावा आपको जो पहले हमने जो पढ़े थे अजंता केव्स और एलोरा केव्स, वो सारे rock cut basically monuments थे. Okay. और अभी जो टेम्पल्स पढ़ेंगे अपार्ट फ्रॉम द रॉक कट एक स्टोन बिग स्टोन को लेके उसके ऊपर कार्विंग की गई है एंड देन दे वर अरेंज्ड टू मेक ए स्टोन टेम्पल. ओके. तो अभी जो टेम्पल्स मिलेंगे अपार्ट फ्रॉम रॉक कट यू कैन फाइंड द स्टोन स्ट्रक्चर्ड टेम्पल्स. जैसे ये टेम्पल आपको दिख रहा है नचना कुथरा का. ओके. ये रॉक कट नहीं है, ये स्टोन्स है. ये देखो स्टोन्स के स्लैब्स हैं. इसको बेसिकली जैसे कि हम ब्रिक्स को बेसिकली अरेंज करते हैं, मैसनरी वर्क करते हैं ब्रिक का और इसको बिल्डिंग क्रिएट करते हैं, उसी तरह से ऐसे स्टोन्स को रखा गया एक स्टोन को दूसरे स्टोन के ऊपर और इस तरह से इस टेम्पल को बनाया गया. ओके. सो नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज अर्ली टेम्पल्स. अर्ली टेम्पल्स का मतलब ये है that we will start the temples from the Gupta period, because as I told you that temples construction was started in the Gupta period only. So Gupta period से ही temple construction start होता है. So these early temples of course are from the Gupta period. So I think ये चीज आपको clear हो जानी चाहिए first of all. So अभी इसमें आगे देखते हैं. So while construction of stupas continued, Brahmanical temples and images of gods also started getting constructed. Often temples were decorated with the images of gods. Myths mentioned in the Puranas became part of narrative representation of the Brahmanical religion. Each temple had a principal image of a god. Okay. So although Brahmanical temples were continued and Buddha की image अभी भी उसमें रखी जा रही थी, but yes, this Buddhism temples continued, but this Brahmanic construction of the Brahmanical temples, that was a new phenomena in the Gupta age. Gupta age में Brahmanical temples बनना start हुए, and why these Brahmanical temples suddenly got a significance? Because first of all, as I told you that this worship of the idols were firstly started in the Buddhism religion, and Buddhism religion से ही ये फिर Jainism और Brahmanism religion में आया. Okay, idol worship. So पहले बुद्धा को ये मानने लगे थे, idol worship करने लगे थे, उसके बाद ये Brahmanic religion में आ गए. पर जो भी narratives यूज होते थे कि कौन सा गॉड को हम बेसिकली इसमें टेम्पल में रखेंगे, that gods were came from the Puranas. So because these Puranas were mostly written in the southern India, तो हमारा जो this peninsular जो इंडिया है तो उसमें बेसिकली ये जो पुरानास है वहां पर डेवलप हुए. ओके. And they have mentioned in numerous of gods, and in fact the theory of incarnation or avatars that also came from the Puranas. कि विष्णु भगवान के 10 अवतार हैं और ये सब चीजें ये सब पुराणास से आती है. ओके. So using these deities of Puranas, they started installing images or idols in the temples and they started worshipping. So ये सारी जो basically आती है idol worship का जो theory that came from the Puranas. Okay. And obviously Brahmanic religion idol worship influenced by the Buddhist religion. Now the shrines of the temples were of three kinds. तो जो temple में basically shrine रखी जाती थी, shrine मतलब जिसमें भगवान की जो मूर्ति रखी जाती थी, idol रखी जाती थी, वो तीन तरह की थी. It's important. So कौन-कौन सी थी? First of is this Sandhara type. So you can interrupt me in between यदि आप लोगों को कुछ doubt है, so definitely आप मेरे से पूछ सकते हो बीच में. The shrines of the temples were of three kinds. One is the Sandhara type, and Sandhara type means without Pradakshina path. Second is the Nirandhara type, that is with Pradakshina path. And last is the Sarvottam Bhadra, which can be accessed from all sides.
तो बेसिकली क्या है इसमें, जनरली क्या होता था, मैं बता देता हूँ इसको, थोड़ा सा हम इसको ले लेते हैं। संधारा, निरंधारा एंड दिस सर्वोत्तभद्रा। सो संधारा में क्या कह रहे हैं हम लोग, संधारा में कुछ ऐसा था। ओके, संधारा मतलब कैसे मान सकते हो कि सिंपल टेम्पल है। ओके, जैसे ये एक टेम्पल है, तो ये जो गेट है, ये डोर है टेम्पल का, जहां से एक्सेस हो सकती है आपकी। ओके, यहाँ पर विंडो हो सकती है, इट्स नॉट गेट बट यस विंडो हो सकती है यहाँ पे। इट्स लाइक संधारा। तो सिंधारा में क्या होता था, प्रदक्षिणा पाथ नहीं होता। प्रदक्षिणा पाथ मतलब हम टेम्पल में जाते हैं तो हमको चारों राउंड लगाना होता है। ओके, जनरली ऐसा ही होता है। तो संधारा में ये प्रदक्षिणा पाथ नहीं था। ओके, संधारा में ये प्रदक्षिणा पाथ नहीं था, तो ये बात याद रखना। एंड जो एक्सेस होती थी वो एक ही साइड से होती थी। जैसे कि मान लो आपको ऐसे एक राउंड लगा के यहाँ से, इनफैक्ट यहाँ से राउंड स्टार्ट होगा और यहाँ पर आके राउंड खत्म होगा गेट पे। तो जो भी आपको बेसिकली एक्सेस होती थी वो एक ही गेट से होती थी और आपको एक राउंड लगाना होता था। ये लेकिन संधारा में नहीं था। संधारा एक सिंपल टेम्पल होती थी, कोई राउंड नहीं लगाना आपको, प्रदक्षिणा पाथ बनाया नहीं होता था। इसका मतलब यहाँ पर कोई प्रदक्षिणा पाथ नहीं है, यहाँ पर प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहाँ पर आप चल के इसकी प्रदक्षिणा लगा सकते हो। जस्ट एक सामने प्लेटफॉर्म है, ऐसे है जैसे यहाँ पर सीढ़ियां बनी हुई है और आपको प्लेटफॉर्म है और चढ़ के जाना है इसके ऊपर जस्ट। ओके, और इसके कोई प्रदक्षिणा पाथ नहीं है, यहाँ को प्लेटफॉर्म ही नहीं, तो आप घूमोगे कैसे। सो दिस इज काइंड ऑफ आर्किटेक्चर इज द संधारा टाइप। निरंधारा में क्या होता था, सेम स्ट्रक्चर होता था लेकिन यहाँ पर प्रदक्षिणा पाथ हो जाता था। ओके, सेम स्ट्रक्चर है बट देयर इज ए प्रदक्षिणा पाथ बिकॉज यहाँ पर प्लेटफॉर्म बना हुआ है। दिस इज निरंधारा, दिस इज निरंधारा। ओके, सो नेक्स्ट इज सर्वोत्तभद्रा। सर्वोत्तभद्रा में क्या होता था कि टेम्पल को आप किसी भी डायरेक्शन से एक्सेस कर सकते थे। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे कि फर्ज करो इस तरह का टेम्पल, तो ये देखो ये चार डोर है, तो ऑब्वियसली चार डोर है, तो चारों डोर को एक्सेस करने के लिए चार डायरेक्शन में भी सीढ़ियां भी बनी होंगी। ओके, जिस तरह से आप समझ सकते हो, जिस तरह से, तो ये सर्वोत्तभद्रा काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली चारों तरफ से एक्सेस आपको मिलेगी टेम्पल की। ओके, दैट्स द काइंड ऑफ सर्वोत्तभद्रा। सो आई होप ये आपको अंडरस्टैंडिंग होगी इसकी, बेसिकली व्हाट इज दिस संधारा, व्हाट इज निरंधारा, व्हाट इज सर्वोत्तभद्रा। सर्वोत्तभद्रा means the temple which can be accessed from the all sides. So these kind of temples are the basically सर्वोत्तभद्रा. So now we'll see that some of the important temple sites of this period, ये आपको याद रखना है कि ये था बेसिकली श्राइन। इस तरह के तीन तरह की श्राइन टेम्पल्स, श्राइन किस तरह से डेवलप होती थी, वो ये टाइप्स ऑफ श्राइन्स हैं ऑफ टेम्पल्स। ये टाइप ऑफ आर्किटेक्चर नहीं है, आप कह सकते हो टाइप ऑफ श्राइन आर्किटेक्चर है ये। ओके, बट ओवरऑल टेम्पल का आर्किटेक्चर कैसा था वो आगे आएगा। Some of the important temple sites of this period are, और इससे इस चैप्टर से काफी क्वेश्चन आते हैं, एक बात याद रखना, इसीलिए इसलिए हम इसको थोड़ा सा अच्छे से कर रहे हैं। Some of the important temple sites of this period are दियोगढ़ in उत्तर प्रदेश। अभी ये जो साइट्स बताएंगे ये याद रखना कि हम लोग अर्ली टेम्पल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। दैट मींस द टेम्पल्स व्हिच स्टार्टेड अर्लीस्ट स्टार्टेड इन उत्तर प्रदेश, सबसे पुराने टेम्पल है बने हुए, तो वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। उनमें से एक एग्जांपल है दियोगढ़, दियोगढ़ इन उत्तर प्रदेश। ये काफी ओल्ड टेम्पल है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ भी चुके एग्जाम में प्रीलिम में। ओके, इट्स अ वेरी ओल्ड टेम्पल दियोगढ़ इन उत्तर प्रदेश, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ये जो नचना कथूर है ये भी एक अर्ली टेम्पल्स में एक एग्जांपल अर्ली टेम्पल, एंड इट्स इन मध्य प्रदेश, 5th सेंचुरी सी में बने। ओके, इट्स शिवा टेम्पल नचना कथूरा। तो ये सारे अर्ली टेम्पल्स हैं जो
गुप्ता एज में बने थे। ओके, एंड सो हमने कौन कौन से एग्जाम्पल अभी देखा, एक तो हमने दियोगढ़ की बात की, दियोगढ़ के अलावा एक ईरान टेम्पल है, ईरान के बाद नचना कूथरा, उदयगिरी। ओके, उदयगिरी के अलावा एक टेम्पल हो रहा है बुमरा। तो ये जो सारे टेम्पल्स है ये अर्ली टेम्पल्स हैं। ओके, ये मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ सारे टेम्पल्स की, डोंट वरी। तो इसको हमने नोट्स बनाए हुए हैं इसमें कमेंट्स में, तो ये नंबरिंग करके मैंने इसको अर्ली टेम्पल समझाए हुए हैं। दिस टेम्पल्स आर सिंपल स्ट्रक्चर्स कंसिस्टिंग ऑफ ए वेरांडा, ए हॉल एंड ए श्राइन एट द रियर। तो ये जो टेम्पल होते थे काफी सिंपल होते थे, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े इसमें स्पायर्स होते थे या कुछ। स्पायर्स मैं आपको बताऊं, स्पायर्स का मतलब यहाँ पर हम ये बोलना चाह रहे हैं स्पायर्स का मतलब ये बोलना चाह रहे हैं स्पायर्स कि जो इस तरह की जो स्ट्रक्चर आजकल बाद में बनने लगे, ठीक है, जिसके नीचे गर्भगृह होता था जहाँ भगवान की मूर्ति पड़ी थी, तो उसके ऊपर ऐसे टावर बनाते थे। तो वो टावर है, ये सब चीजें उस टाइम नहीं थी। अर्ली टेम्पल्स बहुत छोटे होते थे, उनकी हाइट भी काफी छोटी थी। इस तरह से नॉर्मल कंस्ट्रक्शन होता, जैसे अभी देखा हम लोगों ने नचना कुतरा पे अभी फोटोग्राफ देखा था हमने, तो बहुत छोटे टेम्पल होते थे। सो ये जो टेम्पल है जो बाद में बड़े बड़े टेम्पल बनने लग गए, इट्स कॉल्ड शिखर। और ये जो टावर होता था टेम्पल का, ये सब बाद में कंस्ट्रक्शन बनना स्टार्ट हुआ। जो अर्ली टेम्पल काफी छोटे छोटे होते थे। So, so these are the temples which are very simple structures consisting of a veranda. Okay. Veranda मतलब टेम्पल के बाहर का बेसिकली एरिया, ओके, एंड ए हॉल जहाँ पर बैठ सकते हैं, एंड हॉल एंड ए श्राइन। और श्राइन ऑब्वियसली सबसे लास्ट में मिलेगी आप लोगों को, वेरांडा और हॉल के बाद आपको श्राइन मिलेगी। ओके, इट्स ए लिटिल स्लोअर, थोड़ा सा लैग है इसमें। आई थिंक अभी अभी आप लोगों को व्हाइट बॉडी दिख रहा होगा। You can do one thing that okay, we again make a share, just a second. Yes. So I hope that कि अभी आप लोगों को दिख रहा होगा ये. So the temples, these temples, early temples were very simple. They were consisting of a veranda, a hall, and a shrine. Okay, and there were no large spires or towers at the temple, on the temple. Okay, and there were no large gateways. इस तरह की चीजें भी नहीं होती, boundaries वगैरह हैं, बहुत बड़े टेम्पल के बाहर है, gateways हैं, walls हैं. Okay, इस तरह की चीजें नहीं होती, सिंपल टेम्पल होते हैं. तो ये जो अर्ली टेम्पल एग्जाम्पल है, याद रखना, दियोगढ़, ईरान, नचना कुतरा, उदयगिरी, एंड फिफ्थ वन इज दी बुमरा. इसके सबके बारे में पढ़ेंगे हम लोग एक एक करके. सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं दियोगढ़ से. ओके, दियोगढ़. सो दियोगढ़, ये जो जितने भी 5 टेम्पल्स की बात कर रहा हूँ मैं, सारे सारे गुप्ता पीरियड के हैं. एक बात आपको ये भी याद रखनी है, सो ऑल दीस टेम्पल्स आर फ्रॉम गुप्ता पीरियड. सो नाउ विल सी. सो दियोगढ़ में बेसिकली किसके लिए फेमस है? दशावतारा टेम्पल के लिए. दशावतारा का मतलब आप समझते हो कि दैट विष्णु, लॉर्ड विष्णु हैज 10 अवतार्स. उनके 10 जो अवतार है, उसके ऊपर ये टेम्पल जो है वो कहां पर है? दियोगढ़ में. एंड इट्स द वन ऑफ द अर्लीस्ट टेम्पल. दियोगढ़ टेम्पल इज द वन ऑफ द अर्लीस्ट टेम्पल. इट इज एन अर्ली 6th सेंचुरी विष्णु हिंदू टेम्पल लोकेटेड एट दियोगढ़. अभी आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर तो 6th सेंचुरी लिखा हुआ है, एंड गुप्ता एज फ्रॉम द 3rd to 5th सेंचुरी. तो ये जो दियोगढ़ है, मैं इसको गुप्ता एज क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज ये जो टेम्पल बना था ये गुप्ता एज में ही बना था. ओके,
ये जो स्टार्टिंग इस टेम्पल की हुई थी, एक छोटा सा एक टेम्पल बनाया गया था, एक कमरा सा बनाया गया था, ओके। और तो वो जो शुरुआत हुई थी इसकी गुप्ता से स्टार्ट हुई थी, बट इसको बाद में फिर और रिनोवेट कर दिया गया था, ओके। फिर उसके बाद इसमें बेसिकली इमेजेस और इंस्टॉल कर दी गई थी, जैसे कि दशावतार टेम्पल में इसकी तरह से इसको बना दिया गया था। सो इसीलिए ये 6th सेंचुरी में वो जो डेवलप हो गया था, और टेम्पल लेकिन जो शुरुआत हुई थी बननी इसी गुप्ता पीरियड से स्टार्ट हुई थी, एंड दैट इज व्हाई वी कैन कॉल इट फ्रॉम द गुप्ता पीरियड। सो दियोगढ़ टेम्पल में जो फेमस टेम्पल है दैट इज the Dashavatara temple, and it is an early 6th century Vishnu Hindu temple. Okay, इसको early 6th century Vishnu Hindu temple located at Deogarh, Uttar Pradesh, which is 125 kilometers from the Jhansi in the Betwa River Valley in northern central India. तो ये इसकी लोकेशन है बेसिकली दियोगढ़ की, इट्स इन उत्तर प्रदेश, एंड दियोगढ़ इज अ स्मॉल टाउन एंड इट इज द 125 किलोमीटर फ्रॉम झांसी ऑन द बेतवा रिवर बसी और बैंक। इट हैज ए सिंपल वन सेल स्क्वायर प्लान। तो ये जो गुप्ता पीरियड में बना था वो सिंपल ऐसा था कि वन सेल स्क्वायर प्लान, एक छोटा सा स्क्वायर शेप में था इसका प्लान, ओके, चारों साइड से बराबर थी, एंड इज वन ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू स्टोन टेम्पल्स। तो ऑब्वियसली स्टोन टेम्पल्स एंड स्टिल सर्वाइविंग टुडे। तो यदि आपको पूछा जाता कि अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल स्टोन टेम्पल कौन से हैं, देन यू कैन मेंशन द नेम ऑफ दियोगढ़। तो दियोगढ़ सबसे पुराना टेम्पल था। So Dashavatara temple at Deogarh shows the ornate Gupta style architecture. Okay. So ये भी याद रखना कि जो दशावतारा टेम्पल है ये ornate Gupta style architecture का एक एग्जांपल है। That means इसको सजाया गया है स्कल्पचर से। Okay. The temple at Deogarh is dedicated to Vishnu. This temple at Deogarh is dedicated to Vishnu, और ये विष्णु भगवान की बेसिकली इसमें पूजा होती है इस टेम्पल में, देवगढ़ के टेम्पल में, but includes in its small footprint images of various gods and goddesses such as Shiva, Parvati, Kartikeya, Brahma, Indra, river goddess Ganga, and Yamuna, as well as panels showing the 5 Pandavas of the Hindu epic Mahabharata. तो ये सब गॉड और गॉडेसेस यहाँ पर मिलती हैं देवगढ़ टेम्पल में, लाइक शिवा, पार्वती, कार्तिकेय, ब्रह्मा, इंद्र, रिवर गॉडेस गंगा, यमुना एक्सेट्रा। इनके सबके पैनल्स बने हुए हैं यहाँ, ओके, ये देवगढ़ के टेम्पल में। और पांडवास की 5 पांडवास की इमेजेस भी मिलती हैं देवगढ़ के टेम्पल में, दैट इज टेकन फ्रॉम द एपिक महाभारत, महाभारत से ली गई है, ओके। अभी आपको कुछ इमेजेस शो करता हूँ। सबसे पहले तो आप इसका बाहर से देख लो, इसका कैट कैसे दिखता है, आपको बाहर से टेम्पल कैसे दिखता है। ओके, आई थिंक सबकी यहाँ पर इमेज आ रही होगी इस टेम्पल की। सो ये ऐसा दिखता है टेम्पल बाहर से, देवगढ़ वाला टेम्पल, ओके। तो सिंपल स्ट्रक्चर देखो, कोई भी स्पायर नहीं है, कोई भी टावर नहीं है यहाँ पे, सिंपल स्ट्रक्चर। तो ये आप लोगों को ऐसा दिखता है कुछ कुछ, एंड जो कुछ पैनल्स है उसको भी दिखते हैं हम लोग, कौन कौन से पैनल्स यहाँ पर बने हुए हैं देवगढ़ में। ओके, इसमें कुछ स्ट्रक्चर काफी फेमस हैं देवगढ़ के, जैसे ये एक इमेज है नर नारायण की, ओके। यहाँ पर एक तरफ तो नारायण बने हुए हैं और एक तरफ नर बना हुआ है। सो दिस पैनल इमेज इज वेरी फेमस। देवगढ़ की कुछ 3 इमेजेस काफी फेमस हैं। दिस इमेजेस ऑफ नर नारायण, ये देखो मैंने एक पिक्चर्स में जो आपको मैं आपको शेयर करूंगा, ड्राइव का लिंक भेजूंगा, ये सारी पिक्चर्स में आएंगी। तो ये नर नारायण की इमेज कहाँ पर है, देवगढ़ में है, और ये किसमें, दशावतारा टेम्पल, दशावतारा टेम्पल ऑफ देवगढ़, इसमें नर नारायण का पैनल है। सो ये एग्जाम में इस तरह चीजें पूछी जाती है, ओके, नारायण की इमेज कौन से टेम्पल में है। सो इट इज इन दी दशावतारा टेम्पल ऑफ देवगढ़। इसमें 3 इमेजेस काफी फेमस है, एक तो ये नर नारायण की हो गई, एक ये देखो, ये देखो शेष शयन। शेष शयन का मतलब क्या, विष्णु भगवान शेषनाग
के अंदर पड़े हुए हैं, ओके, लेटे हुए हैं। सो ये जो दशावतारा टेम्पल में आ गए देवगढ़ में, कौन सी इमेज है ये? शेष शयन, कि विष्णु भगवान जो शेषनाग के अंदर लेटे हुए हैं, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, ओके। शेष शयन ये इमेज कौन से टेम्पल में है? देवगढ़ दशावतारा टेम्पल। तो पहले हमने देखा नर नारायण, नर नारायण के बाद शेष शयन, ये आगे आएगा, आपको इस बुक में भी लिखा हुआ है ये सब चीजें, जो फेमस देवगढ़ टेम्पल की जो स्कल्पचर्स हैं या इमेजेस हैं, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज ये देखो, ये गजेंद्र मोक्ष की पैनल बोला है, सो गजेंद्र मोक्ष पैनल। गजेंद्र, एज यू नो दैट गजेंद्र स्टैंड्स फॉर एलिफेंट, हाथी है, तो इसको एक तरह से मोक्ष मिल रहा है, ये लॉर्ड विष्णु के पास आके इनको मोक्ष मिल रहा है। सो ये जो स्टोरी है, ये ऑब्वियसली वी डू नॉट नो दैट स्टोरी, गजेंद्र मोक्ष की फुल स्टोरी तो हमें नहीं पता है, बट यस, ये जो गजेंद्र मोक्ष का जो पैनल है, जो एलिफेंट बेसिकली इसको मोक्ष मिल रहा है, दैट इज आल्सो इन दिस दशावतारा टेम्पल ऑफ देवगढ़, ओके। सो ये जो तीन जो इमेजेस हैं, ये काफी फेमस है। इनफैक्ट एक पांडवा की इमेजेस भी है, वो भी आपको दिखाया था, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, पांडवा की इमेज भी यहाँ पर है। यस, दिस वन। ठीक है, ये आप लोगों को दिख रहा है, ये देखो 5 पांडव हैं, और 5 पांडव के साथ ये द्रौपदी, ओके। So this image, this 5 Pandavas, 1, 2, 3, 4, 5, 5 Pandavas and 1 Draupadi. Okay. So this panel is also found in the Dashavatara temple of Deoghar. Okay. ये भी मिलता है। तो ये चार, ये इस बुक में हालांकि 3 चीजें ज्यादा फेमस बोले गए हैं, लेकिन हम 4 चीजों को याद रखेंगे। तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। एक तो था नर नारायण, ओके। नर नारायण में आपको दिखाया, नर मीन्स नॉर्मल जो कॉमन मैन होते हैं, नर, and Narayan means Lord Vishnu. Okay. Narayan का एक पैनल था, that was a famous panel of this Deoghar temple, and that is the earliest stone temple. ये भी याद रखना, Deoghar temple earliest stone temple. That's why it's so much famous. Okay. And second जो temple जो image देखी थी हम लोगों ने, okay, that was the शेष शयन। शेष शयन, शयन का मतलब होता है कि लेटना, शयन का मतलब सोना। तो शेष शयन, शेष मीन्स शेषनाग एंड शयन मीन्स लेटना या सोना, ओके। तो शेषनाग के ऊपर सोने वाली जो इमेज है, ये देवगढ़ में मिली है। एंड थर्ड हमने देखी थी बेसिकली गजेंद्र मोक्ष, ओके। थर्ड वन वाज गजेंद्र मोक्ष, एंड फोर्थ वन इज ऑफ द पांडवास, 5 पांडवास एंड द्रौपदी, गजेंद्र मोक्ष एंड द 5 पांडवास एंड द्रौपदी। तो ये सारी बेसिकली इमेजेस यहाँ पर मिलती हैं देवगढ़ टेम्पल में। अभी सेकंड देखते हैं। सेकंड टेम्पल जो अर्ली टेम्पल में आता है, दैट इज ईरान। ईरान का टेम्पल है, ERAN, इट्स नॉट IRAN, इट्स ईरान, ERAN। सो ईरान में, ईरान इज एन एंशिएंट टाउन एंड आर्कियोलॉजिकल साइट इन सागर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। So maybe I hope that you listen about this district, Sagar district. Sagar district is in Madhya Pradesh, so वहाँ पर ये ईरान के temples मिलते हैं हम लोग। And it was one of the ancient mints for Indian dynasties, as evidenced by the diverse coins excavated here. The site has 5th to 6th century Gupta era temples and monuments, particularly the colossal stone boar with sages and scholars depicted on the body of the sculpture. तो यहाँ पर एक बोर की इमेज मिलती है। बोर का मतलब समझते हो आप लोग? BOAR, बोर क्या होता है? सर जंगली सुअर को बोलते हैं बोर, वाइल्ड पिग। सो ये बोर की इमेजेस मिलती है यहाँ पर, सेजिस और स्कॉलर्स की मिलती है, ओके। ये ईरान में मिलते हैं, स्टोन बोर विद सेजिस एंड स्कॉलर्स। The inscription stones found at Iran are important to reconstructing the chronology and Gupta period empire history. तो ये भी इस चीज में याद रखनी है ईरान के टेम्पल के लिए।
तो जितने भी अर्ली टेम्पल्स हम पढ़ रहे हैं, ये जो मैंने आपको 5 बताए हैं, दियोगढ़, वेदर ईरान, नचनापुत्रा, उदयगिरी और डुमरा, ये जो 5 टेम्पल्स हैं, सिर्फ ईरान में ही इंस्क्रिप्शन हमको मिला है। ओके, सो ईरान में इंस्क्रिप्शन मिला है और वही वो गुप्ता एज के बारे में बताता है। ऑब्वियसली किसी गुप्ता किंग का इंस्क्रिप्शन है वो, और वो गुप्ता एज की क्रोनोलॉजी में थोड़ा सा उसमें पता लगती है इस इंस्क्रिप्शन से। तो बाकी जो 4 हमें जो टेम्पल्स हैं वहां पर इस तरह का कोई इंस्क्रिप्शन नहीं मिला हमें, जो गुप्ता एम्पायर का। But only in one temple in these early temples, that is Iran temple, we have found the inscription. Inscription मतलब आप समझते हो, what is inscription? Okay. तो बेसिकली स्टोन के ऊपर या जो कोई मेटल के ऊपर कुछ लिखा जाता है तो उसको बेसिकली इंस्क्रिप्शन बोला जाता है। तो वो जो लिखावट है सिर्फ हमें इंस्क्रिप्शन है जो वो भी सिर्फ ईरान टेम्पल में ही मिलता है। तो ये बात याद रखनी है। ईरान और एराकीना वाज द कैपिटल ऑफ एराकीना प्रदेश, और एराकीना this Vishay, an administrative division of the Gupta Empire. So basically जो ईरान था, जो ईरान सिटी क्यों पॉपुलर थी तब पीरियड में, because it was a one of the administrative division of the Gupta Empire. Iran is located on the south bank of the Bina River. तो ईरान कौन सी रिवर के ऊपर है? बीना रिवर, BINA, बीना रिवर ऑफ मध्य प्रदेश। और दियोगढ़ टेम्पल उत्तर प्रदेश में, the bank of Betwa River. जो ईरान है वो बीना रिवर के बैंक के ऊपर है इन मध्य प्रदेश। ये रिवर्स बेस्ड भी ऐसे एक स्टोरी बना के क्वेश्चन हमें आ जाता है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, स्टोरी बेस्ड बोल सकते हैं इसको। जैसे कुछ ऐसे दे देंगे वो, जैसे कि एक जो टेम्पल है ये बीना रिवर के ऊपर है और इस तरह से इसमें ये स्कल्पचर्स मिले, कौन सा टेम्पल है, इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। दैट्स व्हाई ये रिवर्स का नाम साथ में। So it's on the Bina River in Madhya Pradesh, the Buddha Gupta pillar. एक तो ये फेमस है, ओके, ये पिलर इसमें एक मिला है, दैट इज बुद्धा गुप्ता पिलर। इसका नाम है बुद्धा गुप्ता पिलर, जबकि इसका नाम बुद्धा गुप्ता पिलर है, बट इट रेज्ड इन द ऑनर ऑफ जनार्दन, अनदर नेम ऑफ विष्णु। ये बुद्धा गुप्ता पिलर ये किसके बारे में, किसकी इमेज शो करता है? जनार्दन। एंड जनार्दन इज नथिंग बट द वन ऑफ द नेम ऑफ द विष्णु। विष्णु को जनार्दन बोला जाता है, एंड उनकी इमेज इस पिलर के ऊपर मिलती है, एंड इन दिस बुद्धा गुप्ता पिलर। तो ये काफी फेमस है, तो इसको आपको याद रखना है दैट दिस बुद्धा गुप्ता पिलर। ये सब इमेजेस हम देखने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। सो बुद्धा गुप्ता पिलर एट ईरान रेज्ड इन द ऑनर ऑफ जनार्दन, दैट इज अनदर नेम ऑफ विष्णु। दिस इज अबाउट द ईरान टेम्पल। तो सेंसियरिटी में सब डिटेल नहीं दे रखी है, इसलिए आपको लोगों को एक अलग से निकाल के दे देना पड़ेगा। द मोस्ट unusual and remarkable temple is dedicated to the Varaha avatar of Vishnu. Typically, Varaha is presented in the temple as a man-born avatar. तो Varaha avatar basically Varaha बोर को ही बोलते हैं, man बोर। Man that means Varaha means man और बोर को यदि मिक्स कर दे, ओके, तो वो जो अवतार बनेगा, जैसे नरसिंह अवतार बोलते हैं हम लोग को, that means इंसान और लोयन को हम लोग मिक्स कर रहे हैं। इसी तरह से Varaha अवतार में किसको मिक्स कर रहे हैं? मैन एंड बोर को। Okay, man और बोर को मिक्स करते हैं। So that's this man और बोर मिक्स अवतार is called वराह अवतार ऑफ विष्णु। तो उसका जो हालांकि जो वराह इमेजेस है वो बहुत जगह मिलती हैं, बाकी टेम्पल्स में भी मिलती हैं वराह की इमेजेस, because it's just one of the this incarnation of the Vishnu only. But this Vara temple specifically is famous in the Iran. तो ईरान में बेसिकली वरा टेम्पल से काफी फेमस इमेजेस मिलती हैं, दैट इज व्हाई इट्स फेमस फॉर दिस वरा दिस टेम्पल। और ईरान टेम्पल के बारे में 2 चीजें याद रखने वाली हैं, 3 चीजें इनफैक्ट। एक तो मैंने आपको बताया कि इसमें इंस्क्रिप्शन मिलते हैं गुप्ता पीरियड के, जो किसी और टेम्पल पे नहीं मिलते। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग दैट इट कंटेन्स दिस बुद्धा गुप्ता पिलर एट ईरान, और जिसके ऊपर जनार्दन और विष्णु की इमेज है। थर्ड थिंग दैट दिस टेम्पल इज फेमस फॉर द वराहा अवतार, वराहा टेम्पल। ओके, तो उसकी इमेजेस देख लेते हैं हम लोग। So it's a temple of Iran. ये देखो आप लोगों को, एक तो ये देखो ये जो इमेज है
आई होप ये इमेज आपको दिखने लग गई होगी अभी, इसको आप जूम भी कर सकते हो और क्लोज में देखना है तो। ओके, तो ये एक ऑब्वियसली बोर है, ये मैन बोर है, वराह अवतार को बेसिकली डिपिक्ट किया हुआ है। ओके, दिस इज लॉर्ड विष्णु एंड साथ में बोर दिखाया हुआ है। सो दिस इज बेसिकली बोर, वराह अवतार ऑफ द विष्णु। ये टेंपल अभी काफी पुराना है बेसिकली, एज वी नो दैट दिस टेंपल्स आर फ्रॉम द गुप्ता पीरियड, सो and that is why these are in so much in this condition, this kind of condition. Okay, से थोड़ा डिग्रेड हो गए हैं, ये पेरिस्ट हो गए थोड़ा सा। okay? अभी ये देखो, ये भी उसी टेंपल का बेसिकली पिक्चर, ये जो फोटो में दिख रही थी विष्णु, लॉर्ड विष्णु की, उसके आगे ये एंट्रेंस थी। ओके, ये लॉर्ड विष्णु है, उसके आगे ये एंट्रेंस है, जिसपे ये एक कॉरिडोर बना हुआ है, ये विष्णु है और ये आगे एंट्रेंस है। अब इसका फ्रंट व्यू दिखा रहा था मैं, अब ये कॉरिडोर से ऐसे दिखते हैं लॉर्ड विष्णु, जस्ट ऐसे, ये देखो, ये कॉरिडोर में ऐसे दिखते हैं, ये यहाँ से एंट्रेंस है और यहाँ से कॉरिडोर से फिर ये लॉर्ड विष्णु। दिस इज नथिंग बट द ईरान टेंपल। ईरान टेंपल बेसिकली फेमस फॉर दिस, एंड डेफिनेटली पिलर की बात और की थी हम लोग ने, उस पिलर को और देखते हैं। पिलर की बात की थी हम लोगों ने। दिस इज द बुद्धा गुप्ता पिलर ऑफ द ईरान, जस्ट ऐसे। ओके, आई होप कि ये दिख रहा होगा आप लोगों को, बुद्धा गुप्ता पिलर। यू कैन मेक इट जूम आल्सो टू सी। सो ये जो बुद्धा गुप्ता पिलर है, ये देखो उसके ऊपर एक जूम करके देखोगे आप लोग, इसके ऊपर जो फोटो बनी हुई है, कैपिटल बनी हुई है, वो लॉर्ड विष्णु की है। ओके, ध्यान से देखोगे, और वो अलग बात है, नीचे एनिमल भी छपे हुए हैं, ये देखो नीचे लॉयंस वगैरह भी बने हुए हैं, थोड़ा जूम करके देखो आप लोग, तो लॉयंस वगैरह भी बने हुए हैं। बट यस, जो जिसको, लेकिन जो कैपिटल है बुद्धा गुप्ता पिलर के ऊपर, दैट इज ऑफ लॉर्ड विष्णु। ओके, एंड ये जो पिलर है, स्टोन पिलर है ऑब्वियसली, लेकिन देखो इसका कुछ कुछ इंस्पायर्ड है, ये जो अशोका ने जो पिलर रख के, तो सेम इंस्पायर्ड है। देखो ये जो आप देखो, ध्यान से देखोगे तो आपको अबेकुस भी दिखेगा। कौन सा अबेकुस है यहाँ पे, शेप क्या है अबेकुस की? यस, सर ये जूम नहीं हो रहा सर। भाई शुड बी, आई थिंक मैंने मोबाइल में खोल रखे साथ में, तो इसमें जूम हो रहा है। ओके, थोड़ा सा इसका आप, आई थिंक लैपटॉप में खोला है ना आपने, यस सर। तो इसमें कुछ ऑप्शन देखो आप, कंट्रोल प्लस करके देखो, कंट्रोल प्लस करो, अभी हुआ क्या? नो सर, इसमें अभी भी नहीं हुआ। ओके, सर आप ये स्क्रीन शेयरिंग में इसमें जूम कर सकते हो राइट, पीसी में अपने? वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है, इसको देखते हैं, जस्ट ऐसे, अभी आपको थोड़ी देर में दिखेगा। अभी दिखा आप लोगों को? यस सर। ओके, तो ये देखो, ये लॉर्ड विष्णु है ऊपर, ये दिख रहा है आप लोगों को, जनार्दनी पिलर के ऊपर कैपिटल इंस्टॉल किए, नीचे 4 एनिमल दिखा रखे हैं यहाँ पे, लॉयंस है आई थिंक, एंड ये जो ये अबेकुस है, ऑब्वियसली किस शेप का है ये? स्क्वायर। स्क्वायर, राइट। मुझे लगा कि सर्कुलर, स्क्वायर, ये अलग अलग टाइप के अबेकुस होते हैं। और नीचे ये देखो, ये जो लोटस टाइप, इसको क्या बोलते थे? यस, इन्वर्टेड लोटस है ये, इन्वर्टेड लोटस, क्या बोलते थे इसको? बेस। राइट, बेस। So this is basically capital, this is abacus, this is base, and जो इसके नीचे जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये शाफ्ट है। ओके, इसके नीचे वाला स्ट्रक्चर ये शाफ्ट है। जस्ट अ सेकंड।
So now we'll move to another temple, that is this third temple is the Nachna Kuthra temple. इसको नाचना कुथरा भी बोलते हैं, नचना कुथरा भी बोलते हैं, नचना कुथरा टेम्पल. So it is a historical site in Gunnor Tehsil of Panna district of Madhya Pradesh, India. Nachna Kuthra are some of the earliest surviving stone temples. The temple site is near the Ganj village. And Nachna Kuthra are some of the earliest surviving stone temples in central India, along with those at Bumra and Deoghar. Bumra and Deoghar की तरह ये early temples में आता है. Their dating is uncertain. Okay. ये कितना पुराना है ये थोड़ा सा अभी अनसर्टेन है, एग्जैक्ट डेटिंग इसकी नहीं हुई है, बट कंपेयरिंग देयर स्टाइल टू स्ट्रक्चर्स दैट कैन बी डेटेड, सम ऑफ द नचना टेम्पल्स आर variously dated to the 5th to 6th century CE, that is Gupta Empire era. अब ये टेम्पल किसके लिए फेमस है? नचना कुथरा टेम्पल, ये सब चीजें याद रखनी है आप लोगों को. वन इज द चतुर्मुख टेम्पल. चतुर्मुख से नाम समझ में आ रहा है आप लोगों को, चार मुख, दैट इज नथिंग बट द चतुर्मुख. तो यहाँ पर ये इमेज मिलती है, लेकिन ये 9th सेंचुरी की इमेज है, ये बाद में इंस्टॉल हुई है. दीज टेम्पल्स इलस्ट्रेट्स इन नॉर्दर्न इंडियन स्टाइल ऑफ हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर. The best preserved and most studied monument is the Parvati temple at Nachna. The exam statement में आता है कि पार्वती टेम्पल कहाँ पर है या चतुर्मुख टेम्पल कहाँ पर है, दैट इज इन दी नचना कुथरा. तो ये शिव पार्वती का टेम्पल है बेसिकली, और यहाँ पर स्पेसिफिकली एक पार्वती टेम्पल भी बना हुआ है नचना कुथरा. ओके, पार्वती टेम्पल से फेमस है ये. सो विल सी, इसकी इमेजेस देखते हैं हम लोग. ओके, नचना कुथरा की दो चीजें मुझे फेमस बताया हमने. वन इज द पार्वती टेम्पल एंड अदर इज द चतुर्मुख इमेज. So first of all, this is the image of Parvati temple. So ये इमेज दिख रही होगी आप लोगों को. Just a second, अभी ओपन होने वाली. Yes, I hope that now you can see Parvati temple. Okay. तो ये पार्वती टेम्पल है नचना कुथरा का, and we'll see another image also. This is the Chaturmukh image. Chaturmukh image of the Chaturmukh Linga. Basically, this is famous by the name of Chaturmukh Ling. Chaturmukh Ling. ये शिवलिंग है बीच में, and ये चार जो इमेज ये शिव भगवान की चार मुख दिखा रखे हैं इस लिंग के चारों तरफ. Okay. This image is basically Chaturmukh Ling, and this is the temple of this image of the Nachna Kuthra temple. तो ये याद रखना है, ये जो टेम्पल है किसके लिए फेमस है. तो ये दो चीजों के लिए फेमस है. वन इज फॉर द पार्वती टेम्पल एंड अदर इज द Chaturmukh Linga image. Okay, sculpture. So now we'll start with another temple, that is the fourth early temple, that is the Udayagiri temple. So the Udaipuri caves are 20 rock-cut caves near Vidisha. तो जो उदयगिरी है इसमें बहुत सारे caves हैं. There are around 20 rock-cut caves, and it's near Vidisha, Madhya Pradesh. From the early years of 5th century CE. They contain some of the oldest surviving Hindu temples and iconography in India.
अगेन ये अर्ली टेम्पल है, गुप्ता पीरियड का है। उदयगिरी केव्स कंटेन आइकोनोग्राफी ऑफ वैष्णविज्म, शक्तिज्म एंड शैविज्म। तो ये यदि क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ये तीनों जो इसमें मंदिर बने हुए हैं, विष्णु भगवान का, शिवा का और दुर्गा का, तो वो जो टेम्पल आपको देखने को मिलेगा वो आपको उदयगिरी में मिल जाएगा। ओके, so they are the only site that can be verifiably associated with the Gupta period monarch from its inscriptions. तो I think ईरान ये जो चीजें इसके बारे में है, उदयपुर के टेम्पल के बारे में, कि जो ईरान में भी हालांकि हमें इंस्क्रिप्शन मिले हैं, बट जो ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा था वहां पर, ये आप याद करेंगे उदयगिरी के लिए थी ये इन्फॉर्मेशन, की सिर्फ उदयगिरी से टेम्पल से पता लगता है कि ये गुप्ता पीरियड से बिलोंग करते हैं। ओके, ये जो टेम्पल है ये गुप्ता पीरियड से बिलोंग करते हैं। इंस्क्रिप्शन ईरान में भी मिलते हैं आपको, और ये आपको उदयगिरी में मिलते हैं, बट जो पता लगता है कि ये गुप्ता पीरियड से ही है, तो थोड़ा करेक्शन कर लेना, यदि आप नोट्स बना रहे हो तो करेक्शन कर लेना। ये जो इंफॉर्मेशन है बेसिकली गुप्ता पीरियड का मुझे पता लगता है, दैट इज वी गॉट फ्रॉम द उदयगिरी इंस्क्रिप्शंस। ओके, एंड जो ईरान में भी हालांकि इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, बट यस हम डेफिनेटली नहीं कह सकते कि ये गुप्ता पीरियड के ही हैं, लेकिन यस वो उसमें से लेकिन लिखा हुआ है कि ये गुप्ता पीरियड की क्रोनोलॉजी के बारे में बताते हैं। ओके, तो आई थिंक इसके ज्यादा कंफ्यूजन हम नहीं रखते हैं, हम ये रखते हैं कि ईरान और उदयगिरी दोनों में गुप्ता पीरियड के इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। ओके, एंड दोनों से क्रोनोलॉजी पता लगती है गुप्ता पीरियड की, बिकॉज आई थिंक ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आएगी नहीं एग्जाम में। हो सकता है आपको कि ईरान और उदयगिरी दोनों में ही इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं गुप्ता पीरियड के। सिंपलीफाई कर देते हैं इसको। So the site has important inscriptions of the Gupta dynasty belonging to the reigns of the Chandragupta II and the Kumaragupta I. So these inscriptions tells us about the Gupta dynasty belonging to the reigns of Chandragupta II and the Kumaragupta I. Okay. तो इन दोनों के रेंज के बारे में पता लगता है, जो उदयगिरी के टेम्पल्स है उससे हम पता लगता है। ओके, यहाँ पर अराउंड 20 केव्स हैं, इसमें डिफरेंट टेम्पल्स हमको देखने को मिलेंगे। तो कुछ इमेजेस देख सकते हैं हम लोग उदयगिरी टेम्पल की। तो उदयगिरी के हमारे पास काफी सारी इमेजेस हैं। ओके, तो उसको यहाँ से शुरू करते हैं। वन इज द इमेज ऑफ दुर्गा, बिकॉज मैंने आपको बताया कि इसमें तीन तरह के आपको टेम्पल मिलेंगे। वन इज ऑफ द विष्णु, लॉर्ड विष्णु एंड द शिवा एंड शक्ति दुर्गा। सो दिस इमेज इज ऑफ Durga. I hope that you can see the image of Shakti or Durga. That is from the Udayagiri. This image is also from Udayagiri. That is the image of the Skanda. Skanda और कार्तिकेय। स्कंदा बेसिकली कार्तिकेय का ही नाम है, और उसको मुरुगन भी बोलते हैं। इमेज ऑफ द स्कंदा, इमेज ऑफ द कार्तिकेय, इमेज ऑफ द मुरुगन, ऑल दीज नेम्स आर सेम। ओके, डिफरेंट रिलीजियंस में इसका नाम अलग अलग है। नॉर्थ इंडिया में इसको हम कार्तिका बोलते हैं, मुरुगन बेसिकली साउथ इंडिया में बोलते हैं, एंड देयर इज अनदर नेम आल्सो स्कंदा। तो ये कार्तिकेय की इमेज भी उदयगिरी में मिलती है हम लोगों को। This image is also again we found from the Udayagiri. Just a second. Yes, this one. वराह अवतार की जो अगेन वराह अवतार के बारे में दिखा रखा है, तो ये इमेज भी हम लोगों को मिलती है उदयगिरी में। ओके, अदरवाइज वराह अवतार के लिए फेमस जो टेम्पल मैंने बताया था ईरान है, पार्वती टेम्पल और वराह अवतार के लिए। यस, और ये जो उदयगिरी में भी अगेन वराह अवतार आपको देखने को मिलेगा। ओके, ये सब इमेजेस हम लोगों को शेयर कर दूंगा ड्राइव में डाल के। सो आगे चलते हैं। सॉरी, पार्वती टेम्पल वाज इन नचला पूछ रहा हूँ।
these images are from now. Udayagiri, just a second. तो ये है क्या बेसिकली, इसको इमेज को नाम है इसका इमेज का सागर पर्सनिफाइड एसोसिएटेड विद द वराह अवतार। अब ये देखो, ये जो सागर है, ये सागर मींस ऑब्वियसली सी की बात कर रहे हैं हम लोग। इसको पर्सनिफाइड करने मतलब कि एक चीज को ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। देखो आपस ये इसके आसपास जो भी लहरें बना रखी है, ये सागर की है, सी की है, और उसके बीच में एक ह्यूमन फिगर दिखा रखा है, दैट इज द ह्यूमन डिपिक्शन ऑफ द सी, सागर। So this is the Sagar personified image of the with Varaha avatar. Okay. So ये जो इमेज मिलती है आप लोगों को सागर पर्सनिफाइड करने वाली, that is also you can found in the उदयगिरी। अब उसके अलावा ये देखो उदयगिरी शिवलिंग। ओके, ये एक उदयगिरी शिवलिंग भी मिलता है यहाँ पर। इसमें मैंने बताया कि इसमें विष्णु, शिवा और शक्ति तीनों की इमेजेस मिलती हैं आप लोगों को। ये आई थिंक हम लोग देख चुके हैं। उदयगिरी वराह अवतार पैनल। This is the Udayagiri Varaha avatar. This after this Shivling. This is the Udayagiri Varaha avatar panel. Now the next image is the Vishnu. Udayagiri Vishnu image. This is the panel of Vishnu. Okay. So I hope ये 3 images हैं। So आगे चलते हैं हम लोग। Next, after this Udayagiri, we will see the next temple is the Bumra. Next temple is the Bumra. So Bumra temple के बारे में पढ़ते हैं। So it sometimes called Bumra, Bubhara or Bharkleshwar, and it's from the 5th to 6th century Gupta period again. तो ये सब याद करने की जरूरत नहीं, 5th 6th century, बस ये रख लो कि गुप्ता एरा के हैं सारे के सारे। And again it is a Hindu stone temple site dedicated to Shiva near Satna. सतना के आसपास है, शिवा का टेम्पल है, बुमरा टेम्पल। जैसे कि उदयगिरी में 3 टेम्पल देखने को मिलते हैं, बट दिस इन बुमरा टेम्पल में शिवा के लिए फेमस है ये। एंड सतना डिस्ट्रिक्ट में है ये, मध्य प्रदेश में। द टेम्पल हैज ए स्क्वायर प्लान। जैसे कि दियोगढ़ में देखा था हम लोगों ने, दियोगढ़ में जो टेम्पल का प्लान था वो स्क्वायर प्लान था, उसी तरह से बुमरा टेम्पल में भी जो प्लान है दैट इज अ स्क्वायर प्लान विद अ सेंटम एंड मंडप। मंडप हम लोग पढ़ चुके हैं, इनिशियल हिस्ट्री में पढ़ाया था व्हाट इज मंडप। प्रेइंग हॉल को वैसे से आप लोग इकट्ठा होते थे, प्रे करते थे, उसको मंडप बोलते थे। ओके, गर्भगृह के बाहर एक मंडप बना होता था जहाँ पर लोग इकट्ठे होते थे। The temple is notable as one of the early examples of architecture that included an enclosed concentric pradakshina path, circumambulation path, like other early Gupta era Hindu temples. It includes a decorated entrance to the sanctum flanked by Ganga and Yamuna, goddesses and intricately carved sculptures. The temple's एकामुख लिंग, एकामुख मतलब एक ही इसमें मुख वाला लिंग है। जैसे हमने चतुर्मुख लिंग देखा था, लेकिन यहाँ पर एक मुख लिंग है। ए मुख लिंग और फेस्ड लिंगम विद ए डिटेल्ड हेड ऑफ शिवा is a much studied example of Gupta art. The temple reliefs include those of the Mahishasur-Mardini Durga। Mahishasur-Mardini Durga को देखने को मिलती है, गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, यम, कुबेर, कार्तिकेय, सूर्य, काम एंड अदर्स। तो सारी इमेजेस आपको इसमें देखने को मिलेंगी बुमरा। एंड ये एक इसके बारे में एक स्पेसिफिक चीज है जो इसी टेम्पल में है, और वो खास बात की है 5th century relief sculpture of the Bumra temple is significant in being one of the earliest known representation in the sculptures of Ganesh। तो अभी तक जितने भी हमने अभी इमेजेस देखी, इतने टेम्पल देखे, तो सबसे गणेश की, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी हमें मूर्ति देखने को नहीं मिली जितने से पहले जो टेम्पल देखे थे। पर बुमरा टेम्पल किसके लिए फेमस है कि यहाँ पर गणेश इमेज भी हमको देखने को मिली है, गणेश का भी स्कल्पचर हमको देखने को मिला। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। हमें स्कंदा का मिल गया, उदयगिरी में स्कंदा का देखा था थोड़ी देर पहले हमने।
but this Ganesh is the famous for the Bumra. तो ये देखते हैं हम लोग again. एक तो ये जो मुख लिंग है, ये जो एक मुख लिंग मैंने आपको बताया था, ये देख लो आप लोग, काफी फेमस कल्चर है बुमरा का, एक मुख लिंग। तो एक तो हमें ये देखने को मिलता है, ओके, बुमरा में। आई थिंक ये इमेज मैंने निकाली थी बुमरा की, ओके। तो ये एक है, एक मुख लिंग, बट इसके अलावा एक गणेश की आई थिंक इमेज और फाइंड की थी मैंने। मे बी इसमें इमेज ना हो, बट यस यू कैन फाइंड द इमेज ऑफ Ganesha also in this temple. Okay. So next we will move to Gavaksh. इसके साथ हम देख लेते हैं कि what is the meaning of the Gavaksh. तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है प्रीलिम में, what is the meaning of Gavaksh. तो कुछ इसमें आपको दिखाता हूँ गवाक्ष की इमेज मेरे को कहाँ देखने को मिलती है, थोड़ी देर पहले दिस, ये बुमरा की है इनफैक्ट, जो हमने अभी मिस कर दी थी इमेज। आई थिंक गणेश इमेज इसी में है। नहीं, गणेश इमेज नहीं है इसमें, ये जो लॉर्ड सूर्य का दिखा रखा है, और लॉर्ड सूर्य के बीच में इसको ऐसे पर्सिफाई किया हुआ है, इमेजेस बना रखी है। तो जो इस तरह का जो एक बनाने का तरीका होता है, इमेज को बनाने का तरीका, उसको गवाक्ष बोलते हैं। तो गवाक्ष में क्या होता है कि बेसिकली एक ड्राइंग होती है और ड्राइंग के बीच में एक इमेजेस बनाई जाती है, ओके। दिस काइंड ऑफ आर्किटेक्चर फॉर्मेशन इज कॉल्ड गवाक्ष। याद रखना आप लोग, गवाक्ष किस तरह के आर्किटेक्चर को बोलते हैं, ओके। तो आसपास ये सारा स्कल्पचर एक पैनल है, ड्राइंग है, और बीच में एक इमेजेस इंस्टॉल करना, दैट इज काइंड ऑफ गवाक्ष। ये बुमरा में मिलता है आप लोगों को। इनफैक्ट गवाक्ष ये काफी हर तरह के टेम्पल्स में हमको देखने को मिलते हैं, एंड नॉट ओनली ब्राह्मणिकल टेम्पल्स, इनफैक्ट यदि बुद्धिस्ट टेम्पल्स की बात करें, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स की बात करें, तो वहां पर भी हमको गवाक्ष देखने को मिलते हैं, ओके। So you can found this gawaksh in any kind of temple in this India. Okay. So we will see what is the meaning of gawaksh. उसकी definition देख लेते हैं. In Indian architecture, गवाक्ष और चंद्रशाला, because गवाक्ष को चंद्रशाला भी बोलते हैं, ये भी याद रखना। गवाक्ष और चंद्रशाला, इसको तमिल में कुड्डू बोलते हैं, are the terms most often used to describe motif. Motif means image centered on an ogee, circular or horseshoe arc. या तो उसके आसपास जो आर्क होगी वो या तो सर्कुलर होगी और या फिर होर्सशो की तरह, जैसे यू शेप, इस तरह का एक शेप हो सकती है, और उसके बीच में इस तरह की, बीच में सर्किल या यू शेप आर्क के बीच में जो इमेज बनी होगी, उस तरह पूरी तरह के ड्राइंग को, बेसिकली पूरी तरह के स्ट्रक्चर को उसके लिए गवाक्ष बोला जाता है, ओके। That decorates many examples of Indian rock cut architecture, later Indian sculptural structural temples and other buildings. In its original form, the arc is shaped like
Cross section of a barrel vault. It is called a Chaitya arc when used on the facade of the Chaitya hall around the single large window. Okay, चैत्य आर्क भी बोला जाता है इसको, जो बहुत बड़ी चैत्य की जो गेट की, जैसे हम देखा था कि आपको देखा आपको 12 हिल्स का आपने देखा था एंट्रेंस गेट कैसा था, तो उसके बीच में भी ऐसी एक बहुत बड़ी एक आर्क बनी होती थी। ओके, तो इनफैक्ट सारे जो चैत्य होल्स थे सबके बाहर एक आर्क बनी होती थी, तो वहां पर भी जनरली गवाक्ष आपको देखने को मिलते थे। तो चैत्य हाउस में भी गवाक्ष देखने को मिलती है और हिंदू टेम्पल्स में भी आपको देखने को मिलते हैं गवाक्ष। दिस इज Sir, can you please explain गवाक्ष again? मतलब exactly क्या है? हाँ, गवाक्ष में आपको देखो एक ड्राइंग बना के दिखाया था। हम ये कहना चाह रहे हैं तुम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि गवाक्ष बेसिकली क्या होता है, या तो एक इस तरह से एक सर्किल होता है एंड इसके बाद बाहर फिर कोई ड्राइंग, सॉरी इसके बाद फिर कोई ड्राइंग्स होंगे। जैसे एक सर्किल है और इसके बाहर ये सारी ड्राइंग्स बनी होंगी, कुछ भी किसी तरह की ड्राइंग्स बनी होती, कुछ भी ड्राइंग्स बनी होंगी बाहर। एक तरह से एक हमने एरिया डिफाइन कर दिया, ओके, कि इस एरिया को हमने बीच में छोड़ दिया, बाकी जैसे सब जगह ड्राइंग बना दी, कुछ फूल पत्ती कुछ बना दिया हम लोगों ने। ओके, एंड इस जो एरिया है, जो सर्कुलर एरिया है, उसके अंदर फिर हमने इमेज बेसिकली दिखाई है। इट कुड बी जटाका स्टोरी, इट कुड बी इमेज ऑफ विष्णु, इट कुड बी एनी काइंड ऑफ इमेज। तो सेंटर में जो इमेज दिखाते हैं हम लोग, जैसे थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि सूर्य की इमेज दिखाई हुई थी, तो या तो एक सर्किल हो सकता है जब हमने एरिया डिफरेंशिएट किया, और बाहर पूरा स्कल्पचर पैनल है जहां पर बहुत सारी तरह की ड्राइंग्स हैं, ओके, और बीच में एक एरिया में डिमार्केट कर दिया टू डिपिक्ट दी एनी डीटी इमेज। कोई भी डीटी की इमेज हो सकती है, कुड बी बुद्धा, इट कुड बी लॉर्ड विष्णु, एनीथिंग। या तो ये इस तरह का एक सर्किल हो सकता है, उसके अंदर इमेज बनाए, और या फिर हम कुछ इस तरह से हॉर्स शो, जैसे कि यू शेप का, जैसे हमने ये बना दिया, यहाँ पर हमने इमेज इंस्टॉल कर दी like this. This is like any kind of image, and इसके बाहर से सारी ड्राइंग्स हैं जो अलग से हम जो बेसिकली डेकोरेट करते हैं, जियोग्राफिकल डिजाइन्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ओके, तो इस तरह की बेसिकली फॉर्मेशन को गवाक्ष बोला जाता है। तो जैसे मैंने तो देखो डेफिनेशन भी दिखाया था यहाँ पर, इसमें इसी शो है। Just a second. तो देखो यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि दिस गवाक्ष इज नथिंग बट ए मोटिव सेंटर्ड ऑन एन ओगी सर्कुलर और होर्सशू आर्क। एक जो मोटिव हम बीच में जो बनाते हैं, ओके, that could be any kind of deity or any kind of specific motif that is so shown at the center of the circular or horseshoe arc that decorates many examples of Indian rock art, which is called gouache. Okay, I hope कि अभी ये clear हो गया होगा आप लोग gouache क्या है। Yes, is it clear? Okay, थोड़ा chat में मेरे को पता नहीं लगता है यहाँ पे, because chat में वैसे दिखती नहीं है यहाँ पे, so mic on कर लिएगा, okay? Yes, sir, it's clear. Okay. So next is the basic form of the Hindu temple. The basic form of the Hindu temple. अभी ये देखते हैं हम लोग, it's very conceptually इसको समझ लो कि क्या क्या हिंदू टेम्पल बारे में, हम टेक्निकल चीजें पढ़ेंगे क्या क्या होता है हिंदू टेम्पल में। So एक तो होता है the basic form of Hindu temple comprises the following: sanctum गर्भगृह, इसको sanctum भी बोला जाता है। sanctum का मतलब गर्भगृह, ठीक है, गर्भगृह बेसिकली हिंदी में होगा और sanctum इंग्लिश में होगा। ओके, गर्भगृह लिटरली वॉर्म हाउस, गर्भगृह इस तरह समझते हैं कि वॉर्म हाउस व्हिच वाज a small cubicle with a single entrance। cubicle मतलब 3 dimensional,
ओके। सो इसका प्लान रेक्टेंगुलर हो सकता है, इसका प्लान स्क्वायर हो सकता है। ओके। सो विद ए सिंगल एंट्रेंस एंड it grew into a larger chamber in time. The Garbhagriha is made to house the main icon, which is itself the focus of much ritual. तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जहां पर हमको भगवान मिलते हैं, जो मंदिर होता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए प्लेस क्या होता है? गर्भगृह और सेंट्रम, जहां पर भगवान बैठे हुए हैं। बाकी जो है वो जो हॉल वगैरह बरामदा वगैरह है, वो तो ठीक है एक लोगों को बैठने के लिए या एंटर करने के लिए या एक शो ऑफ करने के लिए, बट यस जो मेन हमारे मुद्दे की जो चीजें जहाँ पर होता है, जो असली भगवान बैठे हुए हैं उसको बोलते हैं गर्भगृह। एंड जो सेकंड चीज फिर देखते हैं हम लोग मंदिर में कि अपार्ट फ्रॉम दिस गर्भगृह और सेंट्रम, सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज होती है द एंट्रेंस टू द टेंपल व्हिच मे बी ए portico or colonnaded hall that incorporates space for a large number of worshippers and is known as मंडप। तो बेसिकली मंडप क्या होता है कि हर मंदिर के बाहर, हर मंदिर के गर्भगृह के बाहर एक मंडप होता है जहां पर लोग बैठ के पूजा कर सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं। एक तरह से प्रेइंग हॉल बोल सकते हो आप लोग मंडप को। सो दीज आर द बेसिकली प्रेइंग हॉल्स, दिस मंडप्स आर। सो ये गर्भगृह के बाहर होते हैं ऑब्वियसली। ओके, तो यहाँ पर लोग बैठ के कुछ लंगर पानी कर सकते हैं, खाना पीना कर सकते हैं। दे कुड मेक ए वर्शिप आल्सो। सो नेक्स्ट थिंग देखते हैं, थर्ड थिंग, दैट इज freestanding temples tend to have a mountain-like spire which can take the shape of curving shikhar in northern India and a pyramidal tower called a viman in South India. तो थर्ड जो फीचर है हमारे टेम्पल्स का, दैट इज बेसिकली द स्पायर। स्पायर थोड़ी देर पहले आपको टावर बना के दिखाया था, टेम्पल का इस तरह से एक टावर बना के दिखाया था। तो ये टावर दो तरह के होते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। व्हाट इज द नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, व्हाट इज द द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ये हम लोग पढ़ चुके हैं हिस्ट्री में। सो उसी की बात हो रही है यहाँ पे। तो थर्ड जो फीचर है टेम्पल का, दैट इज ए स्पायर और द शिखर ऑफ द टेम्पल। तो गर्भगृह के ऊपर ही बनता है ये, जो नीचे गर्भगृह है, ओके, उसके ऊपर बहुत बड़ा टावर बनाया जाता है ताकि लोगों को दूर से दिखे कि ये टेम्पल है और यहाँ पर भगवान बैठे हुए हैं गर्भगृह। ओके, तो बेसिकली शिखर बनाने का लॉजिक एक ही समय में आता है हम लोगों को, ताकि ये दूर से दिखे कि ये टेम्पल है यहाँ पे। ओके, दैट कुड बी द ओनली रीजन। एंड डेफिनेटली इसको थोड़ा सा मॉन्यूमेंट को थोड़ा सा और इसको शो ऑफ करने के लिए, बेसिकली मंदिर को थोड़ा सा ग्रांडियर बनाने के लिए था। तो देखो जो अर्ली टेम्पल्स हमने पढ़े थे, वहां पर शिखर नाम की कोई चीज नहीं थी। ओके, जो भी टेम्पल किया वो पढ़ा, अच्छा पढ़ा। लेकिन बाद में डेवलपमेंट क्या हुआ, इनफैक्ट जो मॉडर्न टाइम्स में जो टेम्पल्स बनते हैं ज्यादातर सब में शिखर होता है, जो बड़े टेम्पल होते हैं। ओके, तो ये डेवलपमेंट हुआ, दैट इज द थर्ड फीचर ऑफ द टेम्पल। एंड फोर्थ फीचर इज द वाहन। वाहन, हर भगवान की एक सवारी होती थी, आप लोगों को पता है हमारा हिंदू कल्चर में। So like Lord Shiva sat on the mounted on the this Nandi, and Nandi is nothing but the this ox or bell. Okay? So इस तरह से हर, जैसे कार्तिकेयन की this is peacock more, okay, गणेशा की this rat, okay, तो इस तरह से हर भगवान के साथ the वाहन, the mount of vehicle of the temple's main deity along with a standard pillar or ध्वज is placed actually before the sanctum। तो भगवान की मेन डिटी के साथ उनका वाहन भी बनाया जाता था, जैसे कि शिव जी के साथ उनका नंदी बना दिया जाता था। ओके, तो ये भी एक ब्रॉड फीचर बेसिकली टेम्पल्स में देखने को मिलता है। ओके, एंड नॉट ओनली द माउंट ऑफ ए व्हीकल, बल्कि कई बार टेम्पल में साथ में ध्वज भी रखा जाता है। ओके, ध्वज, दैट मींस फ्लैग ऑफ दैट गॉड और डेटी। The two broad orders of temples in the country is known as Nagara in the north and Dravida in the south. At times, the Visara style of temples as an independent style created through the selective mixing of the Nagara and Dravida. ये देखेंगे हम लोग बाद में आगे जाकर आएगा ये। The differentiation between the Nagara, Dravida और एक और स्टाइल होता है, that is the Visara style. Okay, तीन स्टाइल होते हैं मेजरली हमारे टेम्पल्स के इंडिया में देखने को मिलते हैं। That is one is the Nagara, second is the Dravida, and third is basically the नगारा, द्रविड़ा। एंड किसी को डाउट हो तो प्लीज आप लोग माइक्रोफोन ऑन कर लेना, ओके, बिकॉज चैट में हमारा कोई विजिबल नहीं होती। सो नगारा, द्रविड़ा एंड थर्ड इज द बेसिकली द विसारा स्टाइल। ये हम तीनों पढ़ेंगे, इनमें डिफरेंस क्या आगे जाके।
So आगे चलते हैं. So elaborate studies are available on the various sub-styles within these orders. Okay. We will look into the differences in the forms further on this chapter as temples grew more complex, more surfaces were created for sculpture through additive geometry. तो जैसे जैसे टेम्पल ग्रू होते रहे विद द पैसेज ऑफ टाइम, यहाँ पर बहुत सारे स्कल्पचर डिनोट होने लग गए. ओके, टेम्पल्स के बाहर है, टेम्पल के अंदर, बाय एडिंग मोर एंड मोर रिदमिकली प्रोजेक्टिंग सिमेट्री वॉल्स एंड नीचेस विदाउट ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द फंडामेंटल प्लान ऑफ श्राइन. तो फंडामेंटल प्लान ऑफ श्राइन वही था, गर्भगृह, शिखर, ये सब, पर इसको कुछ और डेकोरेटेड, जैसे मल्टीपल शिखर्स बनने लग गए. नॉट ओनली वन शिखर, तो एक ही टेम्पल में बहुत सारे शिखर बनने लग गए और हर शिखर के नीचे गर्भगृह है, कोई ना कोई भगवान बैठे हुए. लेकिन एक शिखर सबसे बड़ा होता है, ओके, जहाँ पर मेन जो हमारे टेम्पल है, सब किसी मंदिर में जाओ, आप लोगों को पता ढूंढना है, मानो सबसे बड़े भगवान कहाँ पर है, जो मेन जिनका टेम्पल है, तो सबसे बड़ा शिखर ढूंढना. तो बड़े सबसे बड़े शिखर के नीचे जो डाइटी बैठे हैं उन्हीं का लॉर्ड का मंदिर है, और जो बाकी जो डाइटी है उनसे छोटे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं. बस इस तरह का कुछ आर्किटेक्चर. तो इसमें हम देखते हैं, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि एक तो मिलता है सेंट्रम, दैट इज गर्भगृह, दैट इज द मेन पार्ट ऑफ द टेंपल, जहाँ पे जिस गर्भगृह के अंदर भगवान बैठे हुए हैं और जिसके ऊपर ही शिखर होता है गर्भगृह के ऊपर या सेंट्रम के ऊपर. सेकंड इज द एंट्रेंस ऑफ द टेंपल, के आसपास मंडप होता है. सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर इज द मंडप. एंड थर्ड इज द विमान और ध्वज, फ्लैग. ओके, एंड सॉरी विमान, थर्ड इज द second is the mandap and third is the shikhar or viman. Shikhar is in northern India, for viman is in the southern India or Dravidian land, and fourth is the vahan and dwaj. तो ये मेन फीचर्स हैं हमारे टेम्पल्स के. ये देखो, इसमें ये साथ में टेम्पल में दिखाया हुआ है. ये नगारा टेम्पल के बारे में बेसिकली अभी शो करेगा आप लोगों को. नगारा इज मींस नॉर्दर्न इंडिया में जो टेंपल आर्किटेक्चर मिलता है उस स्टाइल को बेसिकली नगारा टेंपल्स बोला जाता है. तो ये देखो आप लोग, तो ये शिखर है बड़ा सारा, इसके आसपास बहुत सारे शिखर्स हैं छोटे छोटे, ओके, जहाँ पर और भी सारे लॉर्ड्स बैठे हुए हैं. तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा का सारा बेसिकली क्या है, शिखर. और ये इस शिखर के जस्ट नीचे गर्भगृह है जहाँ पर डाइटी बैठती है. एंड शिखर के जस्ट ऊपर अम्लक है, अम्लक. एंड अम्लक के ऊपर ऐसे एक अम्लक बना होता था, सर्कुलर शेप जैसे अबैकुस की तरह बना होता था. एंड अम्लक के ऊपर बेसिकली कलश होता था. सो दिस इज द टेक्निकल फॉर्मेशन. एंड ये जो है गर्भगृह के नीचे जो सीढ़ियां दिखा रखी हैं, सारी सीढ़ियों को बोलते हैं पीठा, PITHA, पीठा. तो पीठा का मतलब ये है कि हमने टेंपल को रेस्ड प्लेटफॉर्म पे जाके बनाते थे. ओके, तो जो हमारा सरफेस होती थी, सरफेस से काफी थोड़ा सा उठा के प्लेटफॉर्म बना के, प्लिंथ भी बोलते हैं उसको, प्लिंथ और पीठा. तो कुछ PLINTH, प्लिंथ और पीठा, तो उसको बेसिकली उठा के बनाते थे हम लोग. ओके, तो टेंपल थोड़ा सा सीढ़ियां चढ़ के में टेंपल की सरफेस पे पहुंचते थे हम लोग. ओके, तो वो जो सारा जो रेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर टेंपल बना हुआ है, उसको बेसिकली पीठा बोलते हैं या प्लिंथ बोलते हैं. तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को यहाँ तक. तो आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज वाज द स्कल्पचर, आइकोनोग्राफी एंड ऑर्नामेंटेशन. स्टडी ऑफ इमेजेस ऑफ डेटीज फॉल्स विद इन अ ब्रांच ऑफ आर्ट हिस्ट्री कॉल्ड आइकोनोग्राफी. तो इमेजेस को स्टडी करने की ब्रांच को आइकोनोग्राफी बोला जाता है. ग्राफी मींस टू स्टडी, आइकोनो मींस द इमेजेस, which consists of identification of images based on certain symbols and mythologies associated with them. Every region and period produced its own distinct style of images with its regional variations in iconography. The temple is covered with elaborate sculpture and ornament that form a fundamental part of its conception. The placement of an image in temple is carefully planned. तो इमेज को कैसे टेंपल में रखना है, दैट इज वेरी केयरफुली प्लान. फॉर इंस्टेंस, रिवर गॉडेसेस गंगा एंड यमुना यूजुअली फाउंड एट द एंट्रेंस ऑफ ए गर्भगृह इन ए नागरा टेंपल. द्वारपालास
That means doorkeepers are usually found on the gateways or gopurams of Dravida temple. Similarly, Mithunas, Navgraha and Yakshas. Yaksha याद आया आप लोगों को? Yaksha and Yakshanis. Yaksha and Yakshanis बुद्धिज्म से पहले जब इसकी श्रमण ट्रेडिशन में जब इसकी जिसकी पूजा होती थी उनको यक्षास और यक्षिनीस बोला जाता है. ओके, तो ये यक्षास अभी भी मिलते हैं यहाँ पर, लेकिन इनकी अभी काफी इंपॉर्टेंस कम हो गई है. तो अभी ये आपको गेटवे पर यहाँ पर मिलेंगे आप लोगों को यक्षा और यक्षिनीस. लेकिन पहले ये मेन डेटी की तरह इनको ही मनाया जाता था, लेकिन अभी ये मंदिर में बाहर यहाँ पर मिलेंगे आपको. ओके, एंड प्लेस्ड एट द एंट्रेंस टू गार्ड देम. अभी एक तरह से एक गार्ड बन गए हैं जो हमारे मेन डेटीज है, बिकॉज जो इस टाइम पुराना काफी पॉपुलर हो चुका था, पुराण काफी पॉपुलर हो चुका था. तो मैंने बताया था कि हमारे गॉड का भी इवोल्यूशन हुआ. ओके, तो अभी जो इम्पोर्टेंट डेटीज है हमारी वो है विष्णु एंड शिवा एंड शक्ति. ओके, ब्राह्मणी का रिलीजन. ये जो भी नवग्रह हैं, ओके, या जो यक्षस हैं, ये सब आपको दरवाजों पे मिलेंगे. ओके, बाहर गेटवे में मिलेंगे, मंदिर में एंटर होने से पहले या नवी मंडप के आसपास. So various forms or aspects of the main divinity are to be found on the outer walls of the center. The deities of directions, ये देखो एक deity of direction है बेसिकली अष्टदिक्पालस. तो हमारे हिंदू कल्चर में सबसे वर्सेटाइल चीज ये है कि that we could find deity of anything. आपको जो चीज बोलो उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई भगवान है. ओके, तो डायरेक्शंस के भी हमारे पास गोडेस हैं. ओके, दैट इज अष्टदिक्पालस. दीज आर बेसिकली गॉड और गोडेसेस और डिटीज ऑफ द डायरेक्शंस. 8 डायरेक्शन क्यों बोल रहे हैं हम लोग? अष्ट मींस 8. ओके, 8 की डायरेक्शंस. सो 8 की डायरेक्शंस में 4 तो आपको पता ही है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. उसके अलावा जो बीच की डायरेक्शन बेसिकली हैं उनको भी हम नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट ये सभी इंक्लूड कर लेते हैं. तो दिस डायरेक्शंस मेक द 8 डायरेक्शंस. एंड दिस प्रोटेक्टर ऑफ दिस डायरेक्शंस इज कॉल्ड द अष्टदिक्पालस. ओके, सब्सिडरी श्राइन्स. बिकॉज अभी देखो आप लोग ये सब चीजें इंटरकनेक्टेड है. ध्यान से समझना. हम लोगों ने हिस्ट्री में कंसेप्ट समझे थे. हमने एक तो समझा था कि एस्ट्रोनॉमी, एंड वी हैव सीन द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी, एंड हु आर द एनिशिएंट एस्ट्रोनॉमर्स ऑफ इंडिया, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी. यस, एनिशिएंट एस्ट्रोनॉमर्स कौन-कौन से हैं? सर वराहमिहिर. वराहमिहिर एंड व्हाट एल्स? Aryabhat. Yes. How can you float it? Aryabhat. So Aryabhat and Varahamihir, these two basically are this renowned astronomers of India. And now, what is the difference between the astronomy and astrology? Yes. एस्ट्रोनॉमी सर ये साइंस है, स्टार्स और प्लैनेट्स को पढ़ने की, और एस्ट्रोलॉजी है वो हिंदू धर्म वाली वो जो. ओके, ठीक है. कंसेप्ट सही है, चीज यही है. So astronomy basically is a science. Okay, science to study the various planets and stars, and what is the distance between these planets and stars. So ये सारी जो science है एक तरह की, and it's a basically related to the science. तो इसमें religion का कहीं पर कोई place नहीं है. Okay, but astronomy सबसे पहले आई, astronomy पहले आई. That means a few our astronomers found that these are the planets. ये 8 planets हैं. Okay, हमारे अर्थ के आसपास, और ये सन है, सन से इतनी डिस्टेंस है. ये सब चीजें एस्ट्रोनॉमर्स ने बताई हैं. एंड these things, these findings of astronomers were used by the Brahmins for their religious purposes. Okay, तो उस ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी को बेसिकली ब्राह्मण्स ने यूज किया, एक तरह से एक मिथिकल इसको एक रूप देके, और इसको यूज किया ऑब्वियसली टू अर्न मनी. ओके, यदि ये बताएंगे कि आपके ऊपर शनि दशा है और ये आपके ऊपर सोम आपका सही नहीं चल रहा है, मंगल ग्रह का आपको वास हो गया, तो ये सब चीजें नहीं बोलेंगे तो उनको ऑब्वियसली इनकम नहीं होगी. ओके, so and that is why, because this astrology is the fake, is a mythical. Okay, and there is a no truth about this anything of this astrology. ये वास्तु शास्त्र ये सब this fake है. Okay,
So all these things were developed by the Brahmins and by using these findings of the astronomers. So this astrology is related to basically this mythical theories of the which is used to the astronomy for the religious purposes. So ये जो नवग्रह है, ये नवग्रह इज बेसिकली अभी आप देखो उसी टाइम जब ये आर्यभट्ट और ये जो बात कर रहे हैं हम लोग बराबर उन लोगों ने एस्ट्रोलॉजी को फाइंड किया और अभी ये टेम्पल्स बनना भी स्टार्ट हुए तो ये इनको भी प्लेस देना स्टार्ट कर दी थी एस्ट्रोलॉजी के जो कंपोनेंट्स थे लाइक नवग्रह ओके आर्यभट्ट एंड दिस वराह मेड दिस गुप्ता एज में बेसिकली ये आए थे और इसी टाइम में बेसिकली ये टेम्पल बनना स्टार्ट हुए इसलिए मैं दो चीजों को कंबाइन करना चाह रहा था हमने पढ़ा था कि आर्यभट्ट और वराह मेड ये सब गुप्ता एज में आए थे एंड इसी टाइम में ये टेम्पल बनना स्टार्ट हुए और वहां से शुरुआत हुई और जैसे ये टाइम निकला उसके बाद ये नवग्रह जो भी ये ब्राह्मण ने बेसिकली जिसको एस्ट्रोलॉजी यूज करते थे ये भी टेम्पल्स में इनको प्लेस मिलने लग गया ओके एंड ये जो वास्तुशास्त्र देखो वास्तुशास्त्र में जो डिफरेंट जो जोडियक साइंस होते हैं ओके तो उनमें से मिथुना एक साइन जोडियक साइन है तो वो जो जोडियक साइन है उससे रिलेटेड जो भी इमेजेस होंगी वो भी इसमें आपको टेम्पल्स में देखने को मिलेंगे ओके तो ऑल दीस थिंग्स आर इंटररिलेटेड. So various forms or aspects of the main divinity are to be found on the outer walls of the sanctum. The details of the directions such the chorus or whatever. So apart from that, the subsidiary shrines around the main temples are dedicated to the family or incarnations of the main deity. अभी देखो मैंने बताया कि मेन डिटी होता है हमारा शिवा का टेम्पल है तो शिवा इज ए मेन डिटी तो उसके ऊपर जो शिखरों का सबसे बड़ा होगा उसके अलावा जो शिवा ने जो भी अपने जो बेसिकली इनकारनेशन लिए हैं जैसे कि इट कुड बी हनुमान इट कुड बी एनी अदर रुद्र अवतार ओके एंड इट कुड बी देयर सन्स आल्सो लाइक द स्कंद कार्तिक एंड आल्सो गणेश तो उनके जो भी टेम्पल्स होंगे साइड में या पार्वती का टेम्पल होगा वो सारे छोटे शिखर होंगे उनके ओके इट कुड बी द अवतार्स इनकारनेशंस ऑफ द मेन डिटी इट कुड बी द फैमिली ऑफ द मेन डिटी तो उनके जो साथ में टेम्पल्स बने होंगे उनके ऊपर भी शिखर बना होगा बट दे विल बी द शिखर विल बी स्मॉलर देन दिस द शिखर ऑफ द मेन डिटी. So finally, various elements of ornamentation such as gwash, जो हम पढ़ चुके हैं gwash, व्याला और रिवाली इसको पढ़ेंगे हम लोग बड़ी व्याला और व्याली एंड कल्पलता, अमलक, कलश एटसेट्रा यूज्ड इन डिस्टिंक्ट वेज एंड प्लेसेस इन ए टेंपल. तो ये सब चीजें भी टेंपल्स में बेसिकली इनको प्लेस मिलने लग गए. ओके, आई विल मूव अहेड. So we'll see the Nagara or North Indian temple style. The style of temple architecture that became popular in northern India is known as Nagara. In North India, it is common for an entire temple to be built on a stone platform with steps leading up to it. Further, unlike in South India, it does not usually have elaborate boundary walls or gateways. तो नगारा और द्रविड़न स्टाइल में सबसे मेन जो डिफरेंस है कि वहां पर आपको बाउंड्री वॉल्स मिलेंगी और एक बहुत बड़ा गेटवे होता है टेम्पल में एंटर करने के लिए. और जो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है ये आप लोगों को नगारा स्टाइल में नहीं मिलेगा. नगारा स्टाइल में ऐसा कोई बाउंड्री जैसे टेम्पल है इसके बाहर कोई ऐसे बहुत बड़ा एक चार दीवारी नहीं की हुई है इस टेम्पल के उसको हम बाउंड्री वॉल बोलते हैं. जैसे कोई बाउंड्री वॉल नहीं है ओपन है. ओके, आप जाओ टेम्पल में सीधा अपने प्लिंथ के ऊपर चढ़ा आप लोग सीढ़ियां चढ़कर टेम्पल में एंटर कर सकते हो. बट साउथ इंडिया में ऐसा नहीं होता. साउथ इंडिया में एक बाउंड्री वॉल है पहले तो इस टेम्पल के बाद चारों तरफ और फिर बहुत बड़ा गेटवे है. जैसे आप एक फोर्ट में एंटर करते हो एक तरह से किला होता है कैसल होता है कैसल के बाहर एक बाउंड्री वॉल होती है बहुत बड़ी. ओके, एंड बीच में एक बहुत बड़ा गेटवे होता है एक यूनिक गेटवे होता है जिस गेटवे के अंदर से ही आप गोपुरम आया राइट गोपुरम गेटवे द्रविड़ स्टाइल में इसको गोपुरम बोलते थे गेटवे को. ओके, तो उस गोपुरम से ही आप एंटर कर सकते हो जो दरवाजा है आपका जो गेटवे में उसमें ही एंटर कर सकते हो. ओके, बट नगारा स्टाइल में ऐसा नहीं है. नगारा स्टाइल में कोई एक स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं है बाउंड्री वॉल्स नहीं है स्पेसिफिक कोई गेटवे नहीं है. While the earliest temples had just one tower or shikhar, later temples had several. The Garbh is always located directly under the tallest tower. There are many subdivisions of Nagara temples depending on the shape of the shikhar. There are different names for the various parts of the temple in different parts. जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं. जैसे यहाँ पे जो इमेज है सन टेम्पल की दिखा रखी है आप लोगों को सन टेम्पल ऑफ कोणार्क. ये सन टेम्पल की इमेज है. ओके, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क. नगारा स्टाइल पे ये बेसिकली.
तो आगे चलते हैं। और द मोस्ट, अब ये बोलते हैं कि ये जो स्पायर्स है, जो शिखर है, इसके भी डिफरेंट पहले हमने देखे थे श्राइन के डिफरेंट टाइप्स देखे थे, आप लोगों को याद होगा। जो श्राइन थी उसके हमने 3 पार्ट देखे थे, बड़े सिंधारा, निरंधारा एंड द स्वोत्तभद्र। ये 3 हमने टाइप देखे थे श्राइन के। अभी हम देखेंगे 3 टाइप्स ऑफ शिखर। शिखर के 3 टाइप ऑफ शिखर हम जानते हैं। शिखर किसको बोलते हैं? शिखर इज द बेसिकली स्पायर और टावर दैट इज मेड अप अबव द दिस गर्भगृह के ऊपर जो शिखर टावर है, उसके जो टाइप है उसको वो देखेंगे हम लोग। उसके 3 टाइप है अगेन, ओके। जो शिखर है, which is a शिखर, the most common name for the simple शिखर which is square at the base, generally ये square होता था base पे, and whose walls curve on slope inward to point on the top is called the Latina or रेखा प्रसार type of शिखर। तो पहला जो हमारा type of शिखर है that is the Latina type of शिखर, और इसको ये भी बोल सकते हैं रेखा प्रसार type of शिखर। And the second major type of architectural form is in the Nagara order is the Famsana type of शिखर। Famsana buildings tend to be broader and shorter than Latina ones. Their roofs are composed of several slabs that gently rise to a single point over the center of the building, unlike the Latina ones, which looks like sharply rising towers. इसको बना के दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, okay? And third is the basically Vallabhi type. And these are the rectangular buildings with a roof that rises into vaulted chamber. अब इसको बना के दिखाता हूँ। ओके, तो उसको देखते हैं हम लोग। तो पहले हमने बात की लेटिना और रेखा प्रसार टाइप ऑफ शिखर। इसमें क्या होता है, ये देखो स्क्वायर बेस है, फर्ज करो ये स्क्वायर बेस है, इसके ऊपर ये गर्भगृह है जिसमें स्क्वायर बेस है, इसके ऊपर बेसिकली हमने बनाना है शिखर। तो ये कुछ इस तरह का होगा। और यहाँ पर फिर ये वेक्टूस आ जाएगा जिसको हम बल्कि अम्लक बोलते हैं, और इसके ऊपर बेसिकली कलश आ जाएगा। तो इस तरह के टेम्पल को बेसिकली, इस तरह के शिखर को बेसिकली हम बोलते हैं लेटिन। आप अगर नोट्स कॉपी है इसको ड्रॉ कर सकते हो आप लोग ये, और रेखा प्रसाद, रेखा प्रसाद शिखर, उस तरह के शिखर को ये बोला जा सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट काइंड ऑफ दैट इज द फमसाना टाइप। फमसाना टाइप में क्या होता है, ये बेस है, so this is the base। तो यहाँ पर जो शिखर होगा ये बेसिकली कुछ स्लैब्स में होगा, ओके। ये सॉरी स्लैब्स बाहर निकले होंगे, जस्ट ए सेकंड। ये थोड़ा सा पहले तो ब्रॉडर होता है, ये थोड़ा सा इसको थोड़ा बेस को बड़ा बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा ब्रॉडर होता है, ओके। जैसा मान, उसके बाद जो ये जो रूफ हो शिखर होगा ये मल्टीपल स्लैब्स में होगा, ओके। जैसे कि ये स्लैब डाल दी हमने, फिर ये एक और स्लैब डाल दी, फिर एक और स्लैब डाल दी हमने, फिर एक और स्लैब डाल दी। This शिखर is kind of this kind. This is basically फमसाना टाइप ऑफ शिखर। ये थोड़ा सा अच्छे से बना नहीं है मेरे से ड्राइंग,
बढ़िया सा थोड़ा सा, बिकॉज माउस से गाना उतना इजी नहीं, बढ़िया सा थोड़ा सा समझ जाओ कि इसमें मल्टीपल स्लैब्स में होता है। ये स्लैब्स आर डिफरेंट, दिस 1 2 3 दीस आर डिफरेंट स्लैब्स। उसमें एक स्लैब डाली जाती है, फिर उसके ऊपर एक और स्लैब डाली जाती है, और थोड़ा सा हाइट इसके ब्रेथ कम करते रहते हैं। जैसे ऊपर जाते रहते हैं हम लोग ब्रेथ कम करते रहते हैं। तो इस तरह का जो होता है इसको बेसिकली फमसाना टाइप बोलते हैं। फमसाना टाइप, ये फमसाना टाइप का शिखर है। नाउ थर्ड इज द वल्लभी टाइप। अब वल्लभी टाइप में क्या होता है बेसिकली, जैसे कि ये जो रूफ है, आप लोगों को चैत्या होल याद होंगे, हम लोगों ने वॉल्टेड रूफ देखी थी, वॉल्टेड रूफ चैत्या होल देखे थे, 3 तरह के चैत्या होल देखे थे हम लोगों ने। सो वॉल्टेड रूफ, पिलर्ड चैत्या होल, वॉल्टेड रूफ, पिलर लेस चैत्या होल, और जो थर्ड देखा था हम लोगों ने रेक्टेंगुलर रूफ चैत्या होल। ये 3 तरह के चैत्या होल देखे थे। तो उसमें जो वॉल्टेड रूफ चैत्या होल था, तो ये कुछ इस तरह का वल्लभी टाइप ऑफ, जो बेसिकली मैं टेम्पल बनाने वाला हूँ। इसको जो इसके ऊपर जो रूफ होती है वो वैगन टाइप की होती है। वैगन समझते हो आप लोग? पुराने जमाने में आपने तांगा देखा था, तांगा, तांगा के ऊपर जो ये बेसिकली छत होती है तांगे की, कैसे होती थी पहले, जैसे कि मान लो ये तांगा है, तो तांगे को कुछ इस तरह से होता था। याद है आप लोगों को शोले मूवी? ओके, तो जो तांगा होता था उसके ऊपर ऐसे ये इस तरह की एक कर्व बना हुआ है। ट्रेन का डिब्बा होता है, ट्रेन का डिब्बा कैसे होता है? वैगन टाइप, इसलिए इसको वैगन टाइप बोलते हैं। तो छत ऊपर जो रूफ होती है वो कर्व्ड होती है, ऐसे रेक्टेंगुलर नहीं होती। समझ में आया आप लोगों को? तो जो रूफ होती है ऊपर, वो सीलिंग जो होती है वो उसकी कर्व्ड होती है, इट्स नॉट ए प्लेन और फ्लैट नहीं होती है। ओके, तो ये जो तांगे होते थे या जो ट्रेन के हमारे जो वैगन होते हैं, डब्बे होते हैं, वो भी कुछ इस तरह से होते हैं। तो इसी तरह से ये टेम्पल भी होता है। ओके, अब इन 2 पिक्चर्स को मिला दूं मैं तो ये टेम्पल बन जाएगा। अभी इसकी मैं कुछ आपको इमेजेस भी दिखा दूंगा, तो ये कुछ ऐसा समझ लो आप लोग, कुछ इस तरह से होंगे, कुछ इस तरह से। ओके, सो दिस इज कॉल्ड vaulted roof. It could be called as a vaulted roof. Vaulted roof or wagon type roof. Okay. And इस शिखर को क्या बोलते हैं हम लोग? इस शिखर को बोला जाता है वल्लभी। ये शिखर बेसिकली इसको वोल्टी टाइप भी बोला जा सकता है, वैगन टाइप भी बोला जा सकता है, वल्लभी टाइप भी बोला जा सकता है। वल्लभी टाइप शिखर, इसको नोट डाउन कर सकते हो आप लोग। यस, सभी नोट डाउन कर लिया इसको। और नोटबुक साथ में लेके बैठा करो आप लोग, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Yes, everybody wrote it down. Can you move it? Yes, sir. Okay. So अभी हम इसको डिस्कस करने वाले हैं आगे। सो इसको थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं फटाफट से जो हमने बनाया है। So one is the भी देखो आप लोग। So first type of शिखर is the Latina or रेखा प्रसार type of शिखर. Okay. So this is a simple शिखर which is square at the base, जैसे हमने बनाया था, and whose walls curve or slope inward to a point. तो जो ये शिखर है, ये ऐसे इनवर्ट कर्व होता रहेगा और बाद में जाके पॉइंट में मिल जाएगा, जैसे कि हमने बनाया है। ओके, लेटिन और रेखा प्रसार टाइप ऑफ शिखर। एंड सेकंड इज टाइप ऑफ द फमसाना टाइप ऑफ शिखर। एंड फमसाना टाइप ऑफ शिखर में क्या होता है? फमसाना बिल्डिंग्स
tend to be broader and shorter than Latina ones. तो पहले बात तो ये broader है और shorter है. Shorter means इनकी height कम है फमसाना की, लेकिन width ज्यादा है. Okay, height कम है, width ज्यादा है फमसाना type of शिखर की. Their roofs are composed of several slabs. तो काफी सारे slabs इसमें डलते हैं, इसमें मैंने बनाया था आप लोगों को. They gently rise to a single point over the center of the building. Unlike the Latina ones, ये जो चीजें ड्राइंग में आपको बता रहा हूँ ये कई बार आपको देखने को मिलेंगी नहीं, बिकॉज इसको स्वयं आता नहीं है ये है. सो मेक श्योर कि ये सब चीजें आप अच्छे से तैयार कर लो, बना लिया करो ड्राइंग जैसे मैं बनाऊंगा. So gently rise to a single point over the center of the building, unlike the Latina ones which look the sharply rising tall towers. Okay, and the Famsana roofs do not curve inward. इस तरह से curve inward ऐसे नहीं होती है, ये multiple slabs दिखती हैं आप लोगों को. That slope, they slope upward, कुछ इस तरह से inclination दिखता है आपको. On a straight incline, in many northern Indian temples, you will notice that the Famsana design is used as a mandap. ज़्यादातर ये जो Famsana टाइप यूज किया जाता था northern Indian temples में, ये मंडप के लिए यूज होता था. और जो लेटिना या जो बेसिकली रेखा प्रसाद टाइप ऑफ शिखर है, ये ज्यादातर यूज होता था गर्भगृह के ऊपर. ओके, तो गर्भगृह के ऊपर जो सेंटम के ऊपर जो ज्यादातर जो शिखर यूज होता था, दैट वाज द लेटिना और रेखा प्रसाद टाइप ऑफ शिखर. एंड जो मंडप के ऊपर यूज होता था, दैट वाज द Famsana type of shikhar. Later on, the Latina buildings grew complex, and instead of appearing like a single tall tower, the temple began to support many small towers, which were clustered together, rising mountain peaks. तो याद रखना कि मंडप टाइप के लिए ज्यादातर यूज होता था वो था Famsana type, और गर्भगृह के यूज होता था, that was the Latina type or रेखा प्रसाद. And third type, subtype of the Nagara building is that is generally the Vallabhi type. जो मैंने बताया Vallabhi type. These are the rectangular buildings with a roof that rises into a vaulted chamber. Vaulted chamber means curved chamber. The edge of the vaulted chamber is rounded like the bamboo or wooden wagons जो आपको दिखाया था. Wooden wagons में तांगा जो मैंने बताया था कि तांगे होते थे पहले. They would have been drawn by the bullocks in ancient times. तो जो पहले bullocks खींचते थे तांगों को, they are usually called the wagon vaulted buildings. As mentioned above, the form of the temple is influenced by the ancient buildings from that were already in existence after the before the 5th century CE. The early type of buildings was one of them. For instance, if you study ये देखो, ये जो देवगढ़ के हमने इसकी डिस्कस किया था, दिस विष्णु, ओके, शेष शयन, ये इमेज यहाँ पर वेबसाइट में दिखा रखी है, और ये जो टेंपल है ये भी देवगढ़ का है. सो आगे चलते हैं, वल्लभी टाइप के बारे में बात करते हैं हम लोग. The ground plan of many of the Buddhist rock-cut Chaitya caves, you will notice that they are shaped as long holes which end in a curved back from the inside. तो ये बोलेंगे जो ये वल्लभी टाइप ऑफ आर्किटेक्चर जो कर्व्ड रूफ होती थी, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि ब्राह्मणिक रिलीजन में ये इंट्रोड्यूस हुआ. इनफैक्ट इट इंट्रोड्यूस्ड बिफोर द 5th century CE, एंड दैट इज द बुद्धिस्ट चैत्या हाउस. बुद्धिस्ट चैत्या हाउस में भी ये वोल्टेड रूफ या वैगन रूफ या वोल्टेड चैम्बर ये बनते थे. सो आज का ये भी थोड़ा सा इमेजेस और देख लेते हैं, देन वी विल एंड विद दिस क्लास. इसमें आपको ये दिखाना चाह रहा था मैं आप लोगों को, दिस इज ये देखो आप लोग लेटिना स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. ये देखो, ये ऐसे कर्व्ड है, एक ऊपर अम्लक है और देन फ्लैश है. तो दिस इज लेटिना टाइप और रेखा प्रसाद ऑफ टेंपल. ओके, द सेकंड जो मैं आपको दिखाता हूँ, दैट इज द फमसाना टाइप. ये देखो, ये फमसाना टाइप का आपको दिख जाएगा ऐसे. I hope that everybody is able to see it. फमसाना टाइप. इसमें फमसाना टाइप में देखो, ये जो डिफरेंट स्लैब्स दिखती हैं आप लोगों को, जैसे मैंने बताया था कि स्लैब्स की विड्थ कम करते रहते हैं और एक तरह से एक कर्व बन जाता है. ओके, सो दिस इज, यू कैन से दिस इज ए फमसाना टाइप ऑफ टेंपल. थर्ड इज द वल्लभी टाइप. वल्लभी टाइप का भी हमारे पास एक फोटोग्राफ है. ठीक है, तो ये वल्लभी टाइप का है. ओके, ऐसे वैगन की तरह एक रूफ वोल्टेड चैम्बर आपको मिलेंगे कर्व्ड. सो दिस इज ए वल्लभी टाइप ऑफ टेम्पल्स. So I hope these things are clear to you people. So because I am discussing this in by taking so much time, because obviously questions come on this temple architecture. Okay, every year there are questions on this temple architecture, and that is why we are doing it slowly.
So make sure that you are revising each and everything of this temple architecture, and we will take your the remaining test of this environment and architecture within this weekdays. Okay, सबसे हम ले लेंगे बीच में. Okay, and I hope कि everybody is clear to you people, or if there is any doubt or suggestion, you can tell me right now. Okay. Yes, anything you want to ask? Okay, so I suppose that everything is clear to you people. And one thing I want to tell you that although I expect that इनको भी साल एग्जाम देने हैं वो पढ़ रहे होंगे अच्छे से, okay? But still मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि make a repeated revision. ऐसा ना हो कि एक बार आप पॉलिटी पढ़ लिया आप लोग लगे कि सब क्लियर है. But these things needs revision. Okay, तो जितना भी रिवीजन कर पाओ आप लोग बार-बार पढ़ो उन चीजों को, बार-बार क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करो. जो हमने पहले टेस्ट लिए हैं या जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस आए हैं उसको दोबारा से करो उसको. And make a repeated revision. एक बार पॉलिटी होगी दोबारा पकड़ो उसको, एक बार हिस्ट्री होगी दोबारा उसको देखो. Then only you can retain the things. Okay? ऐसा नहीं कि सिर्फ नया पढ़ते जा रहे हो पुराना भूलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. So make sure that you are making a repeated revision. That is the only key to crack this exam. So make sure that you are revising all things which we have read in past also. Okay? Because art and culture environment तो अभी हमने recently पढ़ा तो maybe इसको अच्छे से आप कर लोगे. But I'm telling you that the most scoring spec is the quality. यदि अपनी quality अच्छे से कहीं आपने मिस कर दिया या quality आपने अच्छे से नहीं किया, then definitely you can lose in that front. So make sure that you are revising things. This is it with this class, and the rest things we will take in next class.